بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جن دنوں اوغر خان رام جی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور دیگر سالار حیدرآباد کی طرف مرہٹوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، ان دنوں انگریزوں نے بھی اورنگزیب عالمگیر کے خلاف کارروائیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ دراصل انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 1612 عیسوی میں سورت شہر میں تجارت کا آغاز کیا تھا۔ کمپنی نے اپنے کام کا آغاز عجیب و غریب طریقے سے کیا۔ یہ کمپنی آگرہ و دلی سے مقامی اشیاء خرید کر انگلستان کی بنی ہوئی اشیاء فروخت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک ایجنسی میسولی پٹم میں بھی تھی۔ میسولی پٹم کی بندرگاہ اس وقت قطب شاہی حکومت کے علاقے میں شامل تھی۔ 1633 میں انگریزوں نے بالاسور اور ہری ہر پور میں 2 کارخانے بھی کھول دیے اور 1640 میں انہوں نے مدراس میں ایک قلعے کی بنیاد بھی رکھی اور اس قلعے کا نام انہوں نے فورٹ سینٹ جارج رکھا تھا۔ یہ علاقہ چونکہ مغلوں کی سلطنت میں شامل نہ تھا، لہٰذا مغلوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ 1651 میں انگریزوں نے ہگلی یعنی بنگال میں اپنا پہلا تجارتی دفتر کھول دیا۔ انگریز مختلف علاقوں سے ریشم، چینی اور اس قسم کی دیگر اشیاء خرید کر برآمد کیا کرتے تھے۔ اس وقت صوبہ بنگال کا گورنر شاہ جہاں کا بیٹا شجاع تھا۔ اس نے 1652 میں انگریزوں کو 3000 روپے سالانہ کے عوض تجارت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں نے اپنے تمام دفاتر کی تنظیمیں نو کی جو آزاد حکومت کے قیام کے مترادف تھی۔ مدراس میں انگریزوں نے اپنا صدر دفتر بنا لیا جہاں کمپنی کا سربراہ بیٹھتا تھا اور سورت اور مدراس کی کمپنیاں اس کے ماتحت کام کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد بنگال کے ساتھ تجارت میں انگریزوں نے خوب ہاتھ رنگے۔ اس طرح بنگال کی تجارت تیزی سے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس صوبے سے کمپنی کی برآمدات کی مالیت لگ بھگ 34,000 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہی تجارت بڑھتی 1.5 لاکھ پاؤنڈ سالانہ تک جا پہنچی تھی۔ اس کے بعد انگریزوں نے یورپ سے ماہر رنگ ساز بھی بلائے تاکہ وہ ریشم کے رنگ کا معیار بلند کر سکے۔ انہوں نے ہگلی سے سمندر تک جہاز رانی بھی شروع کر دی۔ اس طرح انگریزوں کے پہلے جہاز نے خلیج بنگال میں سفر شروع کیا تھا۔ شاہ جہاں کے بیٹے شجاع کے بنگال سے چلے آنے کے بعد انگریزوں کو مغلوں سے کچھ شکایات پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اپنی برآمدات پر سالانہ 3000 بطور ٹیکس ادا کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ ان کی آمدنی اور ان کی برآمدات میں اضافہ ہوا تھا، لہٰذا ان سے زیادہ ٹیکس کا مطالبہ کیا جانے لگا تھا، جبکہ انگریزوں کا کہنا تھا کہ وہ اس سے پہلے جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت 3.5% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس کے علاوہ انگریزوں کو مغل سلطنت سے دوسری شکایت یہ تھی کہ راہداری کی فیس کے علاوہ بعض مصنوعات کی مفت سپلائی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزوں کو تیسری شکایت یہ تھی کہ بعض سرکاری عہدیدار ان کے تجارتی سامان کو کھول کر اس کا معائنہ کرتے ہیں اور پھر بہت سا سامان کم نرخ پر خرید کر اسے منڈی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ جہاں تک انگریزوں کے پہلے مطالبے کا تعلق تھا وہ ناجائز تھا، کیونکہ مغل سلطنت میں تاجروں پر 2.5% ٹیکس عائد تھا۔ اس کے مقابلے میں انگریزوں پر 1% مزید اس لیے ٹیکس عائد کیا گیا تھا کہ وہ جزیہ ادا نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک ان کے دوسرے اور تیسرے مطالبے کا سوال تھا، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے امراء کو نہایت سختی کے ساتھ ایسے اقدامات کی ممانعت کر دی تھی، بلکہ ایسے اقدامات کو غیر قانونی بھی قرار دے دیا تھا۔ لہٰذا جو عہدیدار ایسا کرتے تھے وہ گویا اورنگزیب عالمگیر کے احکامات کے خلاف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں راہداری بھی ختم کر دی گئی تھی اور اس سلسلے میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے پوتے عظیم الشان کو بھی نہایت سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ وہ انگریزوں سے زبردستی یا کم قیمت پر کوئی چیز حاصل نہ کرے۔ حقیقت یہ تھی کہ خود انگریز تاجروں نے بعض عہدیداروں کے ساتھ مل کر بدعنوانیاں شروع کر دی تھی، لہٰذا ان عہدیداروں نے بھی انگریزوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا اور ہر بات کا خود خیال رکھتا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر کے خلاف جو انگریزوں کو شکایت تھی وہ ایک طرح سے ان کے اپنے ہی آدمیوں کی پیدا کردہ تھی۔ جب انگریزوں کے ان ناجائز مطالبات کو منظور نہ کیا گیا تو انہوں نے بزور قوت اپنے مطالبات منوانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس طرح بنگال میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ہگلی میں اورنگزیب عالمگیر کے ایک سالار نے 3 انگریزوں کو گرفتار کر لیا جو بغاوت اور فتنہ گری میں ملوث تھے۔ جواباً انگریزوں نے ہگلی کے شہر کو نظر آتش کر کے مغلوں کے ایک جہاز پر قبضہ کر لیا اور بہت سی حکومتی کشتیوں کو آگ لگا دی۔ اس کے جواب میں بنگال کے وائسرائے اور اورنگزیب عالمگیر کے ماموں شائستہ خان نے انگریزوں کے سارے کارخانوں پر قبضہ کر لیا۔ شائستہ خان نے یہی نہیں کیا بلکہ جب انگریزوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی تو اس نے ان سے بڑھ کر طاقت استعمال کی اور انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں انگریز ہگلی سے بذریعہ سمندر فرار ہو گئے۔
अब अंग्रेजों ने तखरीब कारी की कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। पहले उन्होंने मिटिया बुर्ज के करीब एक मुगल इमारत को आग लगा दी और कलकत्ता के करीब एक किले पर कब्जा कर दिया। उसके फौरन बाद उन्होंने समंदर के अंदर एक जजीरे पर भी कब्जा कर लिया, जहां उन्होंने अपनी अस्करी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने बालासूर के शहर को लूट कर आग लगा दी और वहां जो मुगल जहाज खड़े थे उन्हें आग लगाकर तबाह कर दिया। अंग्रेजों की उन कार्रवाइयों के जवाब में औरंगजेब आलमगीर का मामू शाइस्ता खान, जो बंगाल में औरंगजेब आलमगीर की तरफ से हाकिम था, वो हरकत में आया और जिस जजीरे पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उस जजीरे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा। अंग्रेजों ने जब देखा कि शाइस्ता खान उस जजीरे पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तब अंग्रेज उस जजीरे को खाली करके फौरन इधर उधर हो गए। वक्ती तौर पर अंग्रेज शाइस्ता खान के सामने दब गए और शाइस्ता खान ने उन्हें नई शराइत के तहत तिजारत शुरू करने की इजाजत दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये खबरें जब बरतानिया पहुंची तो बरतानिया से कंपनी का एक नया सरबराह आ गया। उसका नाम हेड था। उसने बंगाल खाली करके सिर्फ चिटागांग को तिजारत के लिए एक महफूज और आजाद अड्डा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने आते ही बालासूर के किले को नुकसान पहुंचाया और लोगों पर इंतहाई मजालिम ढाए। लेकिन जब शाइस्ता खान ने आंखें दिखाई और जवाबी कार्रवाई करना चाही तो हेत मद्रास की तरफ चला गया। औरंगजेब आलमगीर को जब अंग्रेजों की इन नाजायज कार्रवाइयों का इल्म हुआ तो उसने अंग्रेजों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पूरी मुगल सल्तनत में उनकी तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन उस वक्त मुसीबत ये थी कि मुगलों के पास कोई बहरी बेड़ा न था, जिसकी बिना पर अंग्रेजों ने अपनी समंदरी ताकत के बायस औरंगजेब आलमगीर को सुलह करने पर मजबूर कर दिया। औरंगजेब ने इस बिना पर भी अंग्रेजों से सुलह कर ली कि उन दिनों अनगिनत लोग समंदर के रास्ते हज के लिए जाते थे, लिहाजा जायरीन हज के लिए समंदरी रास्ते को महफूज रखना भी औरंगजेब आलमगीर जरूरी समझता था। आखिर अंग्रेजों और औरंगजेब आलमगीर के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत बंगाल में एक नया हाकिम मुकर्रर किया गया, जिसका नाम इब्राहिम ज़ईम खान था, जो एक नरम दिल और मुनकसिरुल मिजाज शख्स था। उस मुआहिदे के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट को मद्रास से कलकत्ता जाने की इजाजत दे दी गई। यही वो दिन था जब शुमाली हिंद में बरतानवी इक्तदार की बुनियाद पड़ गई थी। उस मुआहिदे के बाद अंग्रेज मुगलों को अपने सामने कमजोर ख्याल करने लगे थे, लिहाजा लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन जूजिया चाइल्ड ने मुगल सल्तनत से मुकम्मल निजात हासिल करने की पॉलिसी पर अमल करना शुरू कर दिया था। उसने अंग्रेजों के कारखानों को सूरत से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था। तिजारती मरकज के तौर पर उसने बंबई का इंतखाब किया था कि मुगलों को वहां रसाई हासिल न हो सके। यह भी हुक्म जारी किया कि समंदर में मुगल जहाजों को दाखिल होने की इजाजत न दी जाए। लेकिन मिस्टर चाइल्ड के उन अहकामात पर पूरी तरह अमल न हो सका, क्योंकि जब अंग्रेजों ने सूरत से कारखाने मुंतकिल करने की कोशिश की तो वहां जो औरंगजेब आलमगीर का हाकिम था, उसने फौरी तौर पर अंग्रेजों के कारखानों पर अपना पहरा लगा दिया और कारखानों में काम करने वालों को कारखानों के अंदर ही रहने का हुक्म दे दिया। उस सूरत हाल के तहत चाइल्ड एक बहरी बेड़ा लेकर हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंचा और उसने मुगलों से हरजाना अदा करने का मुतालबा किया, क्योंकि उनके कारखाने सूरत में बंद कर दिए गए थे। चाइल्ड की उस कार्रवाई के जवाब में सूरत में जो औरंगजेब आलमगीर का हाकिम था, उसने फौरी तौर पर अंग्रेज कारखानेदार और उसके मकामी साथियों को कैद करके कारखानों पर कब्जा कर लिया। उसके जवाब में चाइल्ड ने यह कार्रवाई की कि उसने मुगलों के वो जहाज जो उस वक्त साहिल पर खड़े थे उन पर कब्जा कर लिया। उसके जवाब में मुगलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और उन्होंने तमाम अंग्रेज कैदियों को जेल में मुंतकिल कर दिया। टैक्सों की अदायगी के सिलसिले में एक तरह से अब अंग्रेजों और औरंगजेब आलमगीर के दरमियान इख्तलाफात गहरे हो गए थे और लड़ाई किसी सूरत सामने आने लगी थी। हालांकि औरंगजेब आलमगीर टैक्सों के सिलसिले में इंतहाई नरमी से काम लेने वाला था। अपने दौरे हुकूमत में औरंगजेब आलमगीर ने लातादाद टैक्स मंसूख कर दिए। उन टैक्सों की तादाद जो माफ किए 60 से 80 तक बयान की जाती है। गो उन टैक्सों की तनसीक से खजाने को बेपनाह माली नुकसान उठाना पड़ा, मगर पैदावार में इजाफे के बायस मालिया में इजाफा किया गया और दीगर इकदामात के तहत न सिर्फ आवाम से टैक्स का बोझ कम हो गया, बल्कि मज़कूरा बाला खसारा भी पूरा कर दिया गया। औरंगजेब आलमगीर ऐसा मेहरबान और नरम दिल था कि अपने दौर में वो मुसलमानों से ज़कात और हिंदुओं से जिजिया वसूल किया करता था। जिजिया की अदायगी के एवज हिंदुओं को वो तमाम टैक्स माफ थे जो मुसलमानों को अदा करने होते थे। इस एतबार से हिंदुओं या उनके अलावा जिस कदर गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में थे, उनके साथ कोई नाइंसाफी न होती थी, बल्कि मजमूई तौर पर उन्हें मुसलमानों के मुकाबले में कम अदायगी करना पड़ती थी। लिहाजा अंग्रेज टैक्सों के सिलसिले में जो शिकायत करते थे वो बिल्कुल नाजायज और गैर मुनासिब थी। 60 से 80 टैक्स माफ करने के बाद भी औरंगजेब आलमगीर ने ज़राई तरक्की को अपने अरूज पर पहुंचाते हुए अपनी आमदनी बढ़ा ली। इस तरह जब हम उसके दौर का जायजा लेते हैं तो अकबर के दौरे हुकूमत में सरकारी खजाने की सालाना आमदनी करीबन 1 करोड़ 90 लाख पाउंड हुआ करती थी।
जबकि यही आमदनी शाहजहां के जमाने में बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख पाउंड हो गई थी। मगर औरंगजेब ने गो 60 से 80 तक टैक्स माफ करते हुए अवाम की बेहतरी का बेहतरीन काम किया। इसके बावजूद खुद उसके जमाने में सरकारी आमदनी लगभग 60 करोड़ पाउंड सालाना थी। इस कदर टैक्स माफ करने के बावजूद भी औरंगजेब आलमगीर ने ऐसी शानदार इक्तसादी मंसूबाबंदी की कि उसके दौर में अवाम खुशहाल थे। अंग्रेजों के अलावा किसी और तबके ने, जिनमें हिंदू भी शामिल थे, टैक्स की अदायगी के सिलसिले में कभी कोई एतराज न किया था, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें मुराद भी बेहतरीन फराहम कर रखी थी। उसकी मंसूबाबंदी इतनी कामयाब थी कि अपनी किफालत करने के बाद मुल्क की मसनूआत गैर मुमालिक को बरामद की जाने लगी थी। तिजारत और बरामदात को फरोग देने के लिए ये बहुत जरूरी था कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जराए रस्लो रसाइल को बेहतर बनाया जाए और आवाम की बेहतरी के लिए औरंगजेब आलमगीर ने इस काम पर बड़ी तवज्जो दी। उसने शहराएं और इमारतें तामीर कराई, पुल बनवाए और दीगर इंतजामात किए। उनमें अंग्रेजों के लिए भी बेहतरी थी। इलावजी उन सड़कों की हिफाजत के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात किए। पैदावार बढ़ाने और तिजारत को फरोग देने की गरज से न सिर्फ हर शख्स को तिजारत करने का मौका मिला, बल्कि नए ताजिरों की हौसला अफजाई भी की गई। उसके साथ औरंगजेब आलमगीर बहुत सी नई सनतों का कयाम अमल में लाया और दीगर सनतों के फरोग के लिए भी हर मुमकिन इक़दामात किए। कालीन बाफी, रेशम और कम ख्वाब साजी के कारखाने लगाए गए। कीमती कपड़ा तैयार करने के लिए अलग कारखाने लगाए गए थे। इसी तरह लोहे का सामान तैयार करने के लिए भी कारखाने तामीर किए गए। ये तमाम कारखाने लाहौर, फतेहपुर, सियालकोट, आगरा, होशियारपुर, जालिंधर, अजमेर, पटना, काठियावाड़, ठट्टा, गुजरात, गोलकोंडा, उड़ीसा, भक्कर और कश्मीर में कायम किए गए थे। अंग्रेजों को यह भी शिकायत थी कि जिस तरह औरंगजेब आलमगीर ये कारखाने कायम कर रहा है, इस तरह उनकी तिजारत मांद पड़ जाएगी। इस बिना पर अंग्रेज टैक्स का बहाना बनाकर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ एक फितना और सरकशी और बगावत खड़ी करने के दर पे थे, लेकिन औरंगजेब उन्हें ऐसा करने की इजाजत देने के लिए तैयार न था। अंग्रेज ये समझते थे औरंगजेब आलमगीर की सल्तनत बड़ी वसी है और अगर उसकी सल्तनत के एक कोने में वो कोई कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई की खबर बड़ी देर बाद औरंगजेब के पास पहुंचने पाएगी। इतनी देर तक वो मजीद कार्रवाइयां करते हुए अपने लिए फवायद हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों को गलत फहमी थी। इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर ने जहां अपनी सल्तनत को 24 सूबों में तकसीम कर रखा था, वहां उसने सूबों के हालात से बाखबर रहने के लिए वाकया नवीस और खुफिया रिपोर्टर मुकर्रर किए हुए थे। ये लोग बराह रास्त मरकज के तहत काम करते थे और सूबाई वाली से उनका कोई सरोकार न होता था। ये लोग किसी खौफ और झिझक के बगैर मरकज को सारे हालात की तफसील फिलफौर पहुंचा दिया करते थे। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर ने वाकया नवीस और खुफिया इतलात मुरतब करने वाले उम्माल को हुक्म दे रखा था कि वो तमाम हालात की मुकम्मल तफसील वक्तन फवक्तन उसे रोजाना रवाना करते रहे। मोहतसिब, काजी, दीवान और बख्शी जो सूबों के तहत हुआ करते थे, वो भी हालात पर गहरी नजर रखते थे और उसकी खबर औरंगजेब आलमगीर को कर दिया करते थे। उन हालात में जब औरंगजेब आलमगीर को यह खबर मिली कि अंग्रेजों ने बंबई को अपना मरकज बना लिया है और वहां अपनी सारी ताकत और कुव्वत को जमा करते हुए उन्होंने मुगलों के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होकर मुगलों को नुकसान पहुंचाने का तहिया किया है, तो औरंगजेब आलमगीर ने भी उनकी उन कार्रवाइयों को नाकाम बनाने का तहिया कर लिया था। एक रोज अहमदनगर के मुस्तकर में राधिका अपने खेमे में अकेली थी और खेमे में बिखरा हुआ अपना और ओगर खान का सामान तय करके बड़ी तरतीब से अपने चमड़े के संदूकों के अंदर रख रही थी। चमड़े के संदूकों में जो वो अपनी हवेली से नकदी और जवाहरात और कीमती सामान लेकर आई थी, वो ओगर खान के खेमे में जस्त के एक संदूक के अंदर मुकफ्फल कर दिए गए थे। राधिका सारे सामान को तरतीब और करीने से लगा रही थी कि खेमे के दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई दी, खातून हम अंदर आ सकते हैं। उस आवाज पर राधिका चौंकी थी। हाथ में पकड़ा सामान उसने एक तरफ रख दिया और जब उसने मुड़कर खेमे की तरफ देखा तो दंग रह गई। खेमे के दरवाजे पर रनमस्त खान और जरनिगार दोनों मियाँ बीवी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखते ही बेपनाह शौक में राधिका खेमे के दरवाजे की तरफ भागी और आगे बढ़कर उसने जरनिगार को अपने साथ लिपटा लिया था। फिर अलहदा हुई और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, आप दोनों पर अफसोस और सद अफसोस, खेमे में दाखिल होने के लिए आप मुझसे इजाजत तलब कर रहे हैं। इस पर रनमस्त खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी बहन, आदमी किसी के मकान में या खेमे में जाए तो उसे इतला देने के बाद दाखिल होना चाहिए। उसके साथ ही तीनों आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर तक रनमस्त ने खेमे का जायजा लिया, फिर राधिका को उसने मुखातिब किया, राधिका मेरी बहन, पहले ये कहो कि भाई कहाँ है। उस मौके पर राधिका ने बड़े प्यारे अंदाज में जरनिगार का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर बड़ी अपनायत में कहने लगी, आपके भाई मीरे मोहतरम की तरफ गए हैं। मेरे ख्याल में कोई मुहिम दरपेश है और उसी सिलसिले में मीरे मोहतरम ने उन्हें बुलाया है। राधिका जब खामोश हुई तब शिकायत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए जरनिगार बोल उठी, राधिका मेरी बहन,
मुझे तुमसे शिकवे ही शिकवे और शिकायतें ही शिकायतें हैं। सूरत शहर में तुमसे कई बार मुलाकात हुई, लेकिन किसी एक मुलाकात में भी तुमने ये तक जिक्र नहीं किया, बल्कि भनक तक ना पड़ने दी कि तुम भाई को पसंद करती हो। अपनी मोहब्बत को तुमने यूं 7 पर्दों के अंदर छुपा कर रखा कि किसी को उसकी हवा तक ना लगने दी। और फिर जब मोहतरम शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ तुम्हारे इलाकों में पड़ाव किया, तब तुम बिल्कुल अजनबियत का इजहार करते हुए अपने भाई के साथ अपनी हवेली की तरफ चली गई। उस वक्त तक किसी के दिल में यह शायबा तक ना गुजर सकता था कि तुम अंदर ही अंदर भाई को चाह रही हो और उनसे मोहब्बत कर रही हो। और फिर तुमने मजीद जुल्म ये किया कि जो ही राजा राम का ताकुब करते हुए भाई इधर गए और जब पलटे तो तुमने एकदम से भाई को अपने शिकंजे में कस लिया और ऐसा कसा के शादी कर ली। अपनी शादी की खबर ना किसी को दी और ना इस सिलसिले में आपने दावत का एहतमाम किया और ना ही। जब तक जरनिगार बोलती रही, राधिका मुस्कुराती रही, यहाँ तक कि उसकी बात काटते हुए राधिका बोल उठी, मेरी बहन, इस सिलसिले में जो कुछ भी तुम कहोगी वो मेरे लिए काबिल कबूल है। औगर खान के पड़ाव में रहते हुए जो मुझे उससे कुर्बत थी, मैं उसे हमदर्दी का नाम देती रही, इसलिए कि उस वक्त औगर खान शीतल को पसंद करते थे और शीतल उन्हें चाहती थी। लेकिन जब मैं उनके पास से रुखसत होने के बाद अपनी हवेली में गई, तब वो दिन मुझ पर बड़े गिरां गुजरे। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो हमदर्दी ना थी, वो औगर खान से मेरी मोहब्बत थी, जो उनके पड़ाव में रहते हुए शीतल की वजह से दबी दबी रही। लेकिन अपने इलाकों में जाने के बाद वही हमदर्दी मोहब्बत का तूफान बनकर आतिश फिशा बनकर भड़क उठी और फिर सारे एहसासात और जज्बात को अपने साथ बहा कर ले गई। जरनिगार मेरी बहन, ये शादी इतनी जल्दी और उजलत में हुई कि बयान नहीं कर सकती। जिस रोज अमीर अपने लश्कर के साथ हमारे इलाकों में पहुंचे, उसी रोज मेरा और अमीर का निकाह हो गया था। मैंने शादी के बाद एक रात भी अपनी हवेली में बसर नहीं की। शादी वाले दिन मेरी और अमीर की दावत शहाबुद्दीन के लश्कर में थी और दावत के बाद हवेली गई, अपनी जरूरत का सामान लिया और फिर मैं लश्कर में मुंतकिल हो गई। शादी के बाद पहली रात हम दोनों मियाँ बीवी ने खेमे में गुजारी और अगले रोज अपने लश्कर के साथ हम अहमदनगर की तरफ रवाना हो गए। अब अहमदनगर पहुंचे हमें चंद ही रोज हुए हैं तो पता चला है कि मेरे मोहतरम अब अमीर को कोई और मुहिम सौंपना चाहते हैं। ये मुहिम कौन सी है, इसकी तो मुझे अभी तक खबर नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद राधिका रुकी, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी। जरनिगार मेरी बहन, जहाँ तक तुम्हारी दावत का ताल्लुक है तो दावत का ऐसा एहतमाम किया जाएगा कि तुम दंग रह जाओगी। यहाँ आने के बाद भी अमीर के बहुत से सालारों और जानने वालों ने शिकवे गिले किए और उनके उन शिकवों गिलों के जवाब में हमने उनकी दावत भी कर दी है। अब अमीर ये इरादा कर रहे थे कि अहमदनगर से हम दोनों मियाँ बीवी सूरत जाएंगे, वहाँ जरनिगार से मिलेंगे, रनमस्त खान को भी वहाँ बुला लेंगे। लेकिन लगता है कुदरत हम पर मेहरबान है, हम दोनों मियाँ बीवी को वहाँ जाना ही नहीं पड़ा और तुम दोनों मियाँ बीवी हमारे पास आ गए हो। पहले ये कहो, दोनों अकेले आए हो या रनमस्त का लश्कर भी उसके साथ है? राधिका जब खामोश हुई तब रनमस्त खान बोल उठा, मेरी बहन, मैं जरनिगार से मिलने के लिए सूरत गया हुआ था। लश्कर मेरा पहले ही हैदराबाद की तरफ था। मेरे लश्कर को मेरे मोहतरम ने मेरी गैर मौजूदगी में ही यहाँ बुलाया है और एक कासिद भेजकर सूरत से मुझे भी अहमदनगर पहुंचने के लिए हुक्म दिया था और उस हुक्म के जवाब में मैं और जरनिगार दोनों ही यहाँ आ गए हैं। जो कासिद मुझे बुलाने के लिए गया था उसका कहना था कि मेरे मोहतरम मुझे भाई के साथ कोई इंतहाई अहम मुहिम सौंपना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उसी मुहिम के सिलसिले में मेरे मोहतरम ने भाई को बुलाया होगा। अब भाई के वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि हम दोनों भाइयों को किस मुहिम पर रवाना किया जाता है। रनमस्त जब खामोश हुआ तब बड़ी हमदर्दी से उसकी तरफ देखते हुए राधिका कहने लगी, रनमस्त मेरे भाई, मेरे ख्याल में तुम दोनों मियाँ बीवी जहाँ थकावट महसूस कर रहे होगे वहाँ तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। मैं तुम दोनों के खाने का एहतमाम करती हूँ। जवाब में रनमस्त मुस्कुराते हुए बोल उठा, मेरी बहन, आपको ऐसी जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आने के बाद हमें तो बाद में पता चला कि भाई भी अपने लश्कर के साथ यहाँ पड़ाव किए हुए हैं। मैं तो पहले अपने लश्कर में गया, वहाँ खाना खाया। मेरी आमद से पहले ही मेरे लश्करियों ने मेरा खेमा नस्ब करके उसकी तज़ीन का सारा सामान भी कर दिया था। जो सामान मैं और जरनिगार लेकर आए हैं वो सामान खेमे में रखने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी आपकी तरफ आ गए हैं। रनमस्त खान यहाँ तक कहने के बाद खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर दोबारा राधिका को मुखातिब करते हुए कह रहा था, राधिका मेरी बहन, पहले ये कहो कि किशन कैसा है? उसके साथ अब हमारा एक रिश्ता है, लिहाजा किशन सिंह अब उन इलाकों में ना रहे। मेरी बहन, इन दिनों शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ उन इलाकों में मरहटों की कार्रवाइयां रोकने के लिए पड़ाव किए हुए हैं। कल को किसी भी वक्त मेरे मोहतरम शहाबुद्दीन को उसके लश्कर के साथ किसी और समत रवाना कर सकते हैं। ऐसी सूरत में वहां किशन के लिए हालात बदतर होने का खतरा है। इस बिना पर यहाँ तक कहते कहते रनमस्त को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इंतहाई संजीदगी और फिक्रमंदी में राधिका बोल उठी, भाई आपका कहना दुरुस्त है, इसका एहसास मुझे भी है और मेरे भाई को भी। वैसे भी मेरी शादी और वहां से रवानगी के बाद किशन बड़ा उदास और अफसुर्दा था।
अब मेरे बाद वो कोशिश करेगा कि हवेली के अलावा वहां हमारी जिस कदर जायदाद है उसे औने पौने दामों फरोख्त कर दे। उसके बाद वो ये देखेगा कि आप दोनों भाई कहां और किस जगह मुस्तकिल कयाम रखते हैं। इस मौजू पर आपके भाई से भी मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि वो हमारी हवेली आगरा में है, लेकिन जब ये जंगों का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो मीरे मोहतरम यकीनन चाहेंगे कि लश्करियों के सालार की हैसियत से हम दिल्ली में रहें। इस बिना पर हम आगरा की हवेली फरोख्त कर देंगे और दिल्ली में दोनों भाई मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। राधिका जब खामोश हुई तब किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए रनमस्त कहने लगा, भाई ठीक कहते हैं, अगर इन इलाकों में हालात पुरअमन हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पुरअमन हो जाएंगे, इसलिए कि राजपूत दब चुके हैं। बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत को मती और फरमाबरदार बनाने के बाद उनके सारे इलाकों को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया गया है। अब ले देकर ये मरहटे रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मरहटों ने जो बगावत और सरकशी का अलाव गर्म कर रखा है उसे भी हम बुझा कर रख देंगे। इसके बाद जब वापस जाएंगे तो वापसी पर हम दोनों भाई आगरा में नहीं रह सकेंगे। मेरे मोहतरम यकीनन पसंद करेंगे कि हम दिल्ली में रहें। इस बिना पर हम दोनों भाई दिल्ली ही में अपने कयाम का कोई बंदोबस्त करेंगे। रनमस जब खामोश हुआ तब राधिका इस बार जरनिगार की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी बहन, अब तुम ये कहो कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे हमसाये में मोहतरम कंबर खान, उनकी बीवी और बेटा कैसे हैं? जवाब में जरनिगार मुस्कुराई और कहने लगी, सब आपके खिलाफ शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं। उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम राधिका के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर शौक अंदाज में जरनिगार की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो क्यों? वो इसलिए कि मैं और रनमस्त ने वहां कयाम किया हुआ था कि शहाबुद्दीन के लश्कर से कुछ कासिद वहां पहुंचे थे और उन्होंने हमें इत्तला दी थी कि भाई और राधिका की शादी हो चुकी है। उस मौके पर सब ने कहा कि कम से कम हमें शादी में बुलाना चाहिए था। अगर वहां नहीं बुलाया जा सकता था तो फिर शादी का एहतमाम सूरत शहर में आकर करना चाहिए था। बहरहाल लोग बेहद खुश हैं कि भाई की आपसे शादी हो गई है, इसलिए कि आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत, कोई हसीन और आला शख्सियत की लड़की भाई को मिल ही नहीं सकती थी। राधिका मुस्कुराई कहने लगी, मेरी बहन, अंदाजा तुम्हारा दुरुस्त है। जिस वक्त मेरा और अमीर का हमारी हवेली के अंदर इंतहाई सादगी में निकाह हुआ था, उस वक्त निकाह में शहाबुद्दीन मेरे भाई के अलावा अमीर और शहाबुद्दीन के कुछ लश्करियों ने शिरकत की थी। निकाह शहाबुद्दीन के लश्कर के काजी हसामुद्दीन ने पढ़ाया था। उनकी सोहबत में रहते हुए मैंने इस्लाम कबूल किया और फिर शहाबुद्दीन ने हमारी शादी की इत्तला अपने कासिदों के जरिए आप लोगों के अलावा अहमद नगर में मीरे मोहतरम को भी कर दी थी। जब हम यहाँ पहुंचे तो मीरे मोहतरम हम दोनों से मिले, मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखा और हम दोनों को शादी पर मुबारकबाद भी थी। उस मौके पर रनमस खान अपना मुंह जरनिगार के कान के करीब ले गया और प्यार भरी सरगोशी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, जरनिगार, जरा भाई की बीवी राधिका की तरफ गौर से देखो। पहले भी ये भाई के पड़ाव में रहती रही है, पर हमने इसे इस अंदाज में नहीं देखा था जिस अंदाज में इसे हम अब देख रहे हैं। खूब जायजा लेने के बाद मुझे ये बताओ कि भाई के लिए सूरत शहर में जो लड़की आप लोगों ने पसंद की थी वो खूबसूरत है या राधिका? यहाँ तक कहने के बाद रनमस्त खान ने जब अपना मुंह पीछे हटा लिया तब जरनिगार की तरफ बड़े गौर और तजस्सुस भरे अंदाज में देखते हुए राधिका ने जरनिगार को मुखातिब किया, मेरी बहन, इस मौके पर तुम्हारे कान में मेरे भाई ने क्या राज़दाराना खुसर फुसर की है? जवाब में जरनिगार खुलकर मुस्कुरा दी। फिर जो सवाल उसके कान में रनमस्त ने किया था वो मुस्कुराते हुए उसने दोहरा दिया था। ये अल्फाज सुनकर राधिका भी मुस्कुरा दी थी। फिर जरनिगार को मुखातिब करके कहने लगी, फिर तुमने रनमस्त के सवाल का क्या जवाब दिया? जरनिगार उस मौके पर थोड़ी देर के लिए बड़े गौर से राधिका की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, अभी तक मैंने उन्हें जवाब तो नहीं दिया मेरी बहन। जवाब तुम्हारे सामने दूंगी। मैं मुंह पर ना तो तुम्हारी तारीफ करूंगी और ना जो सच्ची बात है वो छुपाऊंगी। सूरत शहर में भाई के लिए हमने जिस लड़की का इंतखाब किया था, हुस्न, खूबसूरती, शख्सियत और जमालो कमाल में राधिका मेरी बहन वो तुमसे बहुत पीछे है। मैं समझती हूँ भाई ने अपनी जिंदगी के साथी के लिए एक अनमोल हीरे का इंतखाब किया है। मुझे उम्मीद है कि अनमोल हीरा भाई की जिंदगी में चकाचौंध और जगमगाहट पैदा करके रहेगा। जरनिगार के उन अल्फाज पर राधिका ने ऊपर देखते हुए इंतहाई रिक्कत में कहा था, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। यहाँ तक कहते कहते राधिका चौंक सी पड़ी। उसकी तरफ देखते हुए रनमस्त खान और जरनिगार भी खड़े हो गए थे, इसलिए कि ऐन उसी लम्हे ओगर खान खेमे में दाखिल हुआ था। ओगर खान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, पहले रनमस्त को गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी, फिर जरनिगार के सर पर बोसा दिया। उसके बाद उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों मियाँ बीवी कब आए? मुझे तुम दोनों का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। उसके बाद राधिका की तरफ देखते हुए ओगर खान कहने लगा, राधिका, इन दोनों को कुछ खाने के लिए भी दिया है या मेरे आने तक इन दोनों को भूखा ही बिठा रखा है? लश्करगाह में कुछ लश्करियों से मुझे पता चला है कि दोनों मियाँ बीवी यहाँ पहुंच गए हैं। जवाब में राधिका एक तरह से अपनी सफाई पेश करते हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैंने तो इन दोनों के आने के साथ ही खाने का एहतमाम करना चाहा,
लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया। भाई का कहना था कि यहाँ आने के बाद वो अपने लश्कर में गए, वहां से खाना खाने के बाद फिर दोनों यहाँ आए हैं। इस दौरान ओगर खान आगे बढ़कर राधिका के करीब एक नशिस्त पर बैठ गया था। उसके बाद किसी कदर संजीदा अंदाज में रनमस्त खान उसे मुखातिब करते हुए कह रहा था, भाई लगता है मीरे मोहतरम ने जिस मुहिम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, उसी मुहिम के सिलसिले में उन्होंने मेरे ख्याल में आपको अपने पास बुलाया था। अगर ऐसा है तो क्या मुहिम की तफसील मुझे नहीं बताएंगे? जवाब में ओगर खान ने थोड़ी देर तक गौर से रनमस्त की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मीरे मोहतरम ने जिस मुहिम के लिए हम दोनों भाइयों का इंतखाब किया है, उसी सिलसिले में मीरे मोहतरम ने मुझे बुलाया था और उससे मुतालिक तफसील भी मुझे बता दी है। मेरे मोहतरम तक ये भी इतला पहुंच गई है कि तुम सूरत से यहाँ अपने लश्कर में पहुंच चुके हो, लिहाजा उनका कहना है कि 2 दिन बाद तुम दोनों भाई अपनी मुहिम की तरफ रवाना हो जाओ। अब मैं तुम्हें मुहिम की तफसील बताता हूँ। रनमस्त खान, मेरे भाई, ये मुहिम अंग्रेजों के खिलाफ है। इससे पहले अंग्रेज समंदर के अलावा खुश्की पर भी हमारी सल्तनत के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ रहे हैं, और जब मीरे मोहतरम ने उन पर सख्तियां करना शुरू की तो उन्होंने अब अपना मरकज बम्बई शहर को बना लिया है। बम्बई शहर चूंकि मीरे मोहतरम की सल्तनत में शामिल नहीं है, इस बिना पर अंग्रेजों का ख्याल है कि वो बम्बई में अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तहकम करके वहां से मुसलमानों के खिलाफ तखरीबी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। बम्बई में अंग्रेजों ने एक नहीं कई लश्कर जमा कर लिए हैं। इस तरह अपनी बहरी ताकत के बलबोते पर वो बम्बई को अपना मरकज बनाकर हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों की तरफ पेशकदमी करना चाहते हैं। दरअसल अंग्रेज लालच और हिर्स भरी निगाह से हिंदुस्तान को देख रहे हैं और यहाँ मुसलमानों की जगह अपनी हुकूमत कायम करने के ख्वाह हैं। हम दोनों भाई बम्बई में जो अंग्रेजों का लश्कर है, पहले उस पर हमलावर होकर उसे मार भगाने या उसकी ताकत और कुव्वत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। और रनमस्त खान, मेरे भाई, यह हमारी मुहिम का पहला हिस्सा होगा। हमारी मुहिम का दूसरा हिस्सा बहरी कजाक है। इस वक्त समंदर के अंदर 3 अंग्रेज बहरी कजाक काम कर रहे हैं और चौथा गिरोह पुर्तगालियों का है। जो 3 बहरी कजाक हैं उनके नाम ब्रिजमैन, रॉबर्ट और विलियम किड हैं। ये तीनों कजाक अपने साथ कजाकों का एक बहुत बड़ा गिरोह रखते हैं। यूं जानो, ब्रिजमैन, रॉबर्ट और विलियम किड की सरकर्दगी में समंदर के अंदर डाकुओं के बड़े बड़े 3 गिरोह सरगर्दा हैं और ये मुसलमानों के जहाजों को लूटने और उन पर कब्जा करने का काम जारी रखे हुए हैं। जहां तक ब्रिजमैन का ताल्लुक है तो उसने कई मौके पर हज के लिए जाने वाले जायरीन को लूटा। उसके हमलावर होने की वजह से जायरीन में से अक्सर औरतें जहाज से समंदर में अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए कूद गई थी। लिहाजा ब्रिजमैन को सबक सिखाना अब हमारी अव्वलीन मुहिम होगी। जहां तक बहरी कजाकों के दूसरे सरबराह रॉबर्ट का ताल्लुक है तो ये इंतहाई खतरनाक शख्स है। इसका गिरोह सबसे बड़ा है और इसने मोज़म्बिक से लेकर सुमाट्रा तक तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया है और अक्सर बेशतर मुसलमानों के जहाजों और कश्तियों को नुकसान पहुंचाता है। अंग्रेजों का तीसरा बड़ा बहरी कजाकों का सरबराह विलियम किड है। उसके तहत भी बेशुमार कजाक काम कर रहे हैं। ये मडागास्कर को अपने हथियारों का मरकज बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक मौके पर इसने एक मुसलमान अमीर मुखलिस खान के जहाज पर भी कब्जा कर लिया था। उस जहाज में उस वक्त लाखों की मालियत का सामान लदा हुआ था। ये तो 3 बड़े बहरी कजाक हैं जो अपने अपने गिरोह के साथ समंदर के अंदर शिकस्त और रेख्त के काम में लगे हुए हैं। पुर्तगालियों का भी एक कजाकी गिरोह है। पुर्तगालियों के कजाकों के एक गिरोह ने पिछले दिनों सूरत के एक ताजिर हसन हमदान के जहाज पर कब्जा कर लिया था और जिस जहाज पर कब्जा किया गया उस वक्त उस जहाज में 15 लाख मालियत का कीमती सामान लदा हुआ था। इन बहरी कजाकों से मुतालिक जो इतलात मीरे मोहतरम को मिली हैं, उनके मुताबिक ये तीनों बल्कि 4 गिरोह समंदर के अंदर बहरी कजाकी का काम सर अंजाम देने के बाद खुश्की पर बसेरा करते हैं। आपस में न सिर्फ राब्ता रखते हैं बल्कि माल का लेन देन भी करते हैं और जो माल ये समंदर के अंदर से मुख्तलिफ जहाजों और कश्तियों में लूटते हैं उन्हें साहिली इलाकों में फरोख्त करके रकूम अपने पास जमा करते चले जाते हैं। मीरे मोहतरम ने जो इन बहरी कजाकों के खिलाफ पहला कदम उठाया है वो ये है कि अपने कुछ तिलाया गरों को इन बहरी कजाकों के पीछे लगा दिया है। जब कभी भी ये बहरी कजाक समंदर के अंदर कार्रवाइयां करने के बाद अपने पड़ाव कायम करेंगे, हमारे मुखबिर उसकी इतला देंगे और उन्हीं इतलात की रोशनी में हम इन बहरी कजाकों पर हमलावर होंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मेरे भाई, अब जो काम हमने करना है कुछ इस तरह होगा। मैं और तुम 2 दिन बाद अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करेंगे। बंबई के नवाह में जो अंग्रेजों ने अपना पड़ाव कायम कर रखा है वहां उन्होंने अनगिनत लश्करी जमा कर लिए हैं ताकि आने वाले दौर में हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों पर हमलावर होकर मुसलमानों की सल्तनत को नुकसान पहुंचाएं। उन्हें हमने अपना हदफ बनाना है। कोशिश करेंगे कि शहर के नवाह में जो अंग्रेज अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत को मुज्तमा कर रहे हैं उनकी अस्करी ताकत पर हमलावर होकर उसे पामाल करके रख दिया जाए। मेरे भाई, बंबई में अंग्रेजों के लश्कर का नुकसान करने या उनका खात्मा करने के बाद
हम साहिल के साथ साथ पीछे हट जाएंगे, एक जगह समुद्र के किनारे ही पड़ाव कर लेंगे। इस दौरान वो मुखबिर जिन्हें मीर मोहतरम ने बहरी कज़ाकों पर निगाह रखने के लिए रवाना किया है, उनका हमारे साथ राब्ता रहेगा। जो ही बहरी कज़ाक साहिल पर उतरकर लूटा हुआ सामान बेचने की कोशिश करेंगे या आपस में राब्ता कायम करेंगे, तब हमारे वो मुखबिर हमें इतला कर देंगे। उस इतला के बाद मैं और तुम साहिल के साथ साथ हरकत में आएंगे और उन बहरी कज़ाकों को भी अपना हदफ बनाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर दोबारा रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका। इस सिलसिले में अगर तुम मजीद तफसील जानना चाहते हो या जो बात तुम्हारी समझ में ना आई हो तो वो तुम पूछ सकते हो। जवाब में रनमस्त खान मुस्कुराया और कहने लगा, भाई, मामला बिल्कुल वाज़े और साफ है और खुदावंद को मंजूर हुआ तो हम अपनी इन दोनों मुहिमों में कामयाब कामरान लौटेंगे। यहाँ तक कहने के बाद रनमस्त थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर बारी बारी शरारत आमेज अंदाज में जरनिगार और राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई, 2 दिन बाद जब हम अपने लश्कर के साथ बंबई शहर और उसके बाद साहिल के साथ साथ बहरी कज़ाकों का रुख करेंगे तो राधिका बहन और जरनिगार का क्या करेंगे? इन्हें कहाँ रखेंगे? यहाँ अहमदनगर में हमें अपनी रिहाइश का कोई इंतजाम करना चाहिए, जहाँ इन दोनों को रखने के बाद हम पुरसकून अंदाज में अपनी मुहिम पर रवाना हो सकें। रनमस्त खान जितनी देर बोलता रहा, राधिका घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखती रही। उस मौके पर ओगर खान और जरनिगार भी मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ देख रहे थे। फिर जब रनमस्त खान खामोश हुआ तब राधिका मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरे अजीज भाई, जो अल्फाज तुमने अदा किए हैं मैं उन अल्फाज की तह तक पहुंच चुकी हूँ। मेरे भाई, फिक्रमंद ना हो। तुम दोनों भाइयों की इस मुहिम पर रवानगी से पहले तुम दोनों को मेरी और जरनिगार की रिहाइश के एहतमाम की जहमत से नहीं गुजरना पड़ेगा, इसलिए कि मैं और जरनिगार उस लश्कर में शामिल होंगी जो इन दोनों मुहिमों के लिए रवाना होगा। मेरे भाई, इस सिलसिले में कोई शक हो तो तुम मुझसे वजाहत तलब कर सकते हो। उस मौके पर जरनिगार ने एक कहकहा लगाया, फिर रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं इस मौके पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बहन राधिका की अक्लमंदी की मोतरिफ हूँ कि जो बात मुझे कहना चाहिए थी उसने मुझसे पहले ही अदा कर दी। अब आप बोले क्या कहते हैं? रनमस्त हंस दिया, कहने लगा, मैंने अब क्या कहना है? मैं तो यही कह सकता हूँ कि हाँ, तुम दोनों बहनें वाकई लश्कर में शामिल होंगी। रनमस्त खान के खामोश होने पर जरनिगार ने थोड़ी देर तक बड़े गौर से ओगर खान की तरफ देखा, फिर मुंह बिसोरने के अंदाज में कहने लगी, भाई, मुझे और हमारे बहुत से अजीजों अकारिब को आपके खिलाफ इंतहा दर्जे का गिला और शिकवा है। आपने चुपके चुपके राधिका ने छुप छुप कर आपसे मोहब्बत कर ली, हमें खबर तक ना हुई। फिर हमें एक तरह से तजस्सुस में डालने के लिए आप दोनों ने एक दूसरे पर हम सब की गैर मौजूदगी में ना सिर्फ मोहब्बत का इजहार कर दिया बल्कि एक दूसरे को अपना जीवन साथी भी बना लिया। भाई, हिंदुस्तान की इस कदर वसी और अरीज सल्तनत के अंदर इतना बड़ा हादसा नमूदार हुआ और हमें खबर तक ना हुई, ना ही हमें आपने इतला दी, ना ही अपनी शादी में शिरकत के लिए बुलाया। हालांकि मैं आपकी छोटी इकलौती बहन हूँ, मुझे तो कम से कम आपको बुलाना चाहिए था। ये सारे अल्फाज जरनिगार ने मुस्कुराते हुए कहे थे। जवाब में ओगर खान कहने लगा, मेरी बहन, तो वाकई मेरी छोटी और इकलौती बहन है, लेकिन जिन हालात में हमने शादी की मेरे ख्याल में राधिका ने तुम्हें बता दिए होंगे। अब जबकि तुम दोनों बहनें इस वक्त इकट्ठी हो तो तुम दोनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बशर्त ये कि तुम दोनों बुरा न मानो। राधिका तो बुरा नहीं मानेगी, इसलिए कि मैं इस मौजू पर उससे पहले ही बात कर चुका हूँ और ये वैसा ही करेगी जैसा कि मैं चाह रहा हूँ। जरनिगार मेरी बहन, तुझसे भी मुझे उम्मीद है कि तू मेरे ख्यालात से इत्तेफाक और ताउन करेगी। ओगर खान जब खामोश हुआ तब जरनिगार बड़ी अकीदत से ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपके ख्यालात, आपकी तजवीज से ताउन ना करना मैं गुनाह ख्याल करती हूँ। बोले, आप क्या कहते हैं? खुशी और मुसरत भरे अंदाज में ओगर खान थोड़ी देर तक जरनिगार की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, अब जबकि हम दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, जैसा कि तुम जानती हो, शादी के बाद अक्सर रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं, रुख फिर जाते हैं, एक दूसरे की तरफ चेहरों की बजाय पीठ हो जाती है। अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह मैं और रनमस्त आज तक 2 सगे भाइयों की तरह इकट्ठे रहते रहे हैं, हमारे अंदर इत्तेफाक और प्यार रहा है, मैं पसंद करूंगा तुम दोनों बहनें भी ऐसे ही रहो और तुम्हारे इस तरह रहने से मेरे और रनमस्त के दरमियान पहले जैसा इत्तेफाक और प्यार रहेगा। उस मौके पर जरनिगार बड़े अज़्म, बड़ी बेबाकी और इस्तक़लाल का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, मेरे मोहतरम और अजीम भाई, आप इस सिलसिले में कोई फिक्र ही ना करें। यूं जाने कि मैं रनमस्त खान हूं और राधिका ओगर खान है। जिस तरह रनमस्त खान और ओगर खान ने आज तक इत्तेफाक और ताउन और बाहमी प्यार से जिंदगी बसर की है, इसी तरह मैं और राधिका भी आप दोनों भाइयों को आपस में ताउन और प्यार और इत्तेफाक पैदा करके दिखाएंगी। जरनिगार के उन अल्फाज पर ओगर खान खुश हो गया था, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, राधिका,
तुम और जरनिगार यहीं बैठो, मैं और रनमस्त जाते हैं और मीरे मोहतरम के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है उससे छोटे सालारों को आगाह करने के साथ साथ लश्कर को भी 2 दिन बाद कूच के लिए तैयार रहने का कहते हैं। राधिका और जरनिगार ने जब इस बात में गर्दन हिलाई तब ओगर खान और रनमस्त खान खेमे से निकल गए थे। 2 दिन बाद दोनों भाइयों ने अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ अहमदनगर से बंबई की तरफ कूच किया था। बंबई शहर के नवाह में जो अंग्रेजों का मुस्तकर था उस पर हमलावर होने के लिए ओगर खान और रनमस्त खान ने पहले से अपने मुखबिर उस समत फैला दिए थे। अभी वो बंबई से काफी दूर ही थे कि उनके कुछ मुखबिर उनके पास आए और उन्होंने ओगर खान पर इंकशाफ कर दिया कि बंबई शहर में जो अंग्रेजों का मरकज और शहर के नवाह में जो उनका मुस्तकर है वहां सारे सालारों लश्करियों तक को उन दोनों भाइयों के हमलावर होने की खबर हो चुकी है। लिहाजा अंग्रेज मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार और मुस्तैद हैं। यह खबर मिलने के बाद ओगर खान ने अपने लश्कर को रोक दिया था। आने वाले मुखबिर जब इतला कर चुके तब रनमस्त खान ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई अब आपका क्या इरादा है? बंबई शहर में जो अंग्रेजों ने अपना मरकज बना रखा है उसे भी हमारे आने की इत्तला हो चुकी है। इसके अलावा शहर के नवाह में जो उनका मुस्तकर है जहां उन्होंने बहुत बड़ा लश्कर रखा हुआ है वहां भी ये इत्तला पहुंच चुकी है। अब हमारे लिए 2 तरह की मुसीबतें और उलझनें उठ खड़ी होंगी। पहली ये कि जिस कुव्वत को हमने अपना हदफ बनाना है उसे हमारे आने की इत्तला हो चुकी है। इसके अलावा जहां हम हमलावर होने के लिए जा रहे हैं वो इलाका हमारी ममलुकत का नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज मरहटों के साथ इत्तेहाद और ताउन करते हुए हमारे खिलाफ उनसे काम ले और जब हम अंग्रेजों पर हमलावर हों तो मरहट्टे पुश्त की तरफ से हमलावर होकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तो लम्हा भर के लिए ओगर खान ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे भाई अब तक जो हालात गुजरे हैं वो तुम्हारे सामने हैं। आज तक किसी भी मौके पर इन मरहटों ने ना पुर्तगालियों से ताउन किया है ना अंग्रेजों से, बल्कि जब भी कहीं मौका मिलता रहा है ये मरहट्टे इन दोनों कुव्वतों पर हमलावर होकर उनके खिलाफ लूट मार का बाजार गर्म करते रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मरहट्टे हमारे खिलाफ हरकत में नहीं आएंगे। वैसे भी मरहटों ने इन दिनों अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को हैदराबाद में मुंतकिल कर रखा है। उनके लश्कर का एक हिस्सा जिंजी में है, राम जी भी वही है, और फिर हमारे सालारों में से एतकाद खान, असद खान, दाऊद खान, दलेर खान सब उनके मुकाबले पर मौजूद हैं और उनके साथ उलझे हुए हैं। मेरे ख्याल में मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उस उलझाव से निकलकर मरहट्टे हम पर हमलावर होने की जुर्रत नहीं करेंगे। यहां तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी एक उलझन, एक मसला खत्म हुआ। मैं यकीन से कह सकता हूं मरहट्टे अपने आप को हमारी और अंग्रेजों की जंग में मुलव्विस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब मेरे भाई तुम्हारा दूसरा खदशा यह है कि अंग्रेजों को हमारे आने और हमलावर होने की इत्तला हो चुकी है। वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार और मुस्तैद हैं। मेरे भाई अगर उन्हें इत्तला हो चुकी है तो होती रहे। हमने कब और किस मौके पर कहा कि उन्हें इत्तला नहीं होनी चाहिए? हम तो उन्हें बताकर इत्तला देकर मारना चाहते हैं। अब अंग्रेजों को अपने सामने नीचा दिखाने और उनके मुस्तकर को तबाह बर्बाद करने के लिए जो तरीका कार और लाहे अमल में इख्तियार करना चाहता हूँ उसकी तफसील तुमसे कहता हूँ। उस पर अमल करते हुए खुदावंद ने चाहा तो अंग्रेजों को हम भीगे हुए कपड़ों की तरह खिंगाल कर रख देंगे। ये अपने नुकसान का अंदाजा करते फिरेंगे और नुकसान ऐसा होगा जिसका वो शुमार भी ना कर सकेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए रनमस्त खान के करीब हुआ। राजदारी में रनमस्त खान को मुखातिब करते हुए कुछ कहना चाहता था कि उससे पहले ही रनमस्त बोल उठा, भाई कभी कभी आप ऐसा काम करते हैं कि मुझे अपने आप से नफरत होती है और आप पर तरस भी बड़ा आता है। गुस्सा तो मुझे आप पर आ ही नहीं सकता। अब इस वक्त देखें, आप अपने घोड़े को एड़ लगाकर मेरी तरफ आए। आप ये भी कर सकते थे कि मुझे हाथ का इशारा करते, मुझे अपने करीब बुलाते और मैं आपके करीब जाता, जो आपने कहना था वो कहते। मुझे अपनी जात पर भी फख्र होता कि मेरे। ओगर खान ने मुस्कुराते हुए रनमस्त खान के मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगा, रनमस्त खान तुम इतने भी नन्हे बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें हुक्म देता फिरूं। हम अंग्रेजों पर हमलावर होने के लिए आए हैं। जहां मैं लश्कर के एक हिस्से का सालार हूं वैसे ही हिस्से के सालार तुम भी हो। यह बराबरी का मामला है। फिर मेरे भाई जब मैं ऐसा करता हूं तो यह भी सोचा करो कि ऐसा करने में मेरा कल्बी सुकून भी होता है। बहरहाल छोड़ो इस मामले को, जो मैं कहना चाहता हूं गौर से सुनो। उसके साथ ही ओगर खान अपना मुंह मजीद उसके करीब ले गया और कहने लगा, रनमस्त खान मेरे भाई, जो कुछ मैं कहने लगा हूं गौर से सुनना। इस वक्त तो हमने अपने लश्कर को रोका हुआ है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो कहने के बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। हम अंग्रेजों के मुस्तकर के सामने जाकर पड़ाव करेंगे तो जाहिर है उन्हें हमारे आने की इत्तला हो चुकी है। वो बिल्कुल तैयार होंगे। हम उनके सामने पड़ाव कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हम उनके पड़ाव के सामने दिन के वक्त पहुंचे। लश्कर के एक हिस्से को तैयार और मुस्तैद रखेंगे ताकि अंग्रेज फिलफौर हमलावर होने की कोशिश ना करे और ना ही रात के वक्त शब खून मार सके। मेरे अजीज भाई,
हम दोनों अगले रोज मुंह अंधेरे अपने काम की इब्तिदा करेंगे। उस वक्त समंदर की तरफ से तेज हवाएं चल रही होंगी, अब भी चल रही हैं। मुंह अंधेरे बीमार होने के बाद हम 2 कदम उठाएंगे। पहला ये कि तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुझसे अलहदा होते हुए बाएं जानिब चले जाओगे। ऐसा करके तुम अंग्रेजों के पड़ाव के बाएं जानिब जरा फासले पर मुनासिब जगह घात लगा लोगे और ये सारी कार्रवाई मुंह अंधेरे ही मुकम्मल कर ली जाएगी। दूसरा कदम जो मैं उठाऊंगा वो ये कि अपने लश्कर में से मैं बेहतरीन घुड़सवारों का इंतखाब करूंगा जो रात के अंधेरे में पहले समंदर की तरफ जाएंगे, फिर समंदर की तरफ से अंग्रेजों के पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पड़ाव चूंकि समंदर की मुखालिफ समत होगा और अंग्रेजों की पुष्ट पर समंदर होगा, लिहाजा समंदर की तरफ से वो किसी के हमलावर होने की उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे। वो घुड़सवार जिनका मैं इंतखाब करूंगा और उन्हें समंदर की तरफ भेजूंगा, समंदर के किनारे जाने के बाद वो पलटेंगे, अंग्रेजों के पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और पड़ाव के खेमों को आग लगा देंगे। इस तरह तेज हवा में खेमों को आग लगाने के बाद हमारे वो सवार वक्त जाया किए बगैर वापिस अपने लश्कर में आ जाएंगे। चंद खेमों को जब आग लगेगी तो तेज समुद्री हवाओं की वजह से वो मजीद खेमों को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। उस मौके पर हमारे पड़ाव में बिल्कुल खामोशी और सुकून होगा। अंग्रेज यही ख्याल करेंगे कि फिल वक्त हमारा उन पर हमलावर होने का कोई इरादा नहीं है, लिहाजा वो अपनी पूरी तवज्जो आग बुझाने पर सर्फ कर देंगे। जिस वक्त अंग्रेज अपनी खेमागाह में लगी आग को बुझाना शुरू करेंगे, सामने की तरफ से मैं हमलावर होऊंगा। मेरे हमलावर होने की वजह से अंग्रेज अपने कुछ लश्करियों को तो आग बुझाने ही में लगाए रखेंगे, बाकी लश्कर को मुझ पर हमलावर होने के लिए मुतय्यन कर देंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था। रनमस्त खान मेरे भाई, जब यहाँ तक कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और अंग्रेज पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मेरे साथ मसरूफे जंग होंगे, तब तुम अपने काम की इब्तिदा करना। अंग्रेजों के पहलू की तरफ से नमूदार होना और उन पर हमलावर होकर उनकी सफों को उलटते चले जाना। जब तुम पहलू की तरफ से हमलावर होगे तो अंग्रेजों का दबाव मुझ पर भी कम हो जाएगा। इस तरह मैं भी उनके अंदर घुसता चला जाऊंगा। मेरे भाई, ऐसा करके हम अंग्रेजों को बदतरीन शिकस्त दे सकते हैं और उनकी ताकत और कुव्वत पर ऐसी तबाहकुन जरब लगा सकते हैं कि आने वाले दौर में अंग्रेज हमारे खिलाफ सर नहीं उठाएंगे, बल्कि हमारी मुकर्रर करदा शराइत के मुताबिक हमारे साथ ताउन करते हुए यहाँ रहने पर मजबूर होंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान खामोश हो गया। रनमस्त खान थोड़ी देर तक उसे तौसीफी अंदाज में देखता रहा, फिर कहने लगा, भाई, जो तजवीज आपने पेश की है उसके तहत खुदाबंद ने चाहा तो हमारी कामयाबी यकीनी और अंग्रेजों की बर्बादी और नाकामी भी यकीनी है। लिहाजा हमें यहाँ रुक कर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आगे बढ़कर अंग्रेजों के मुस्तकर के सामने बिल्कुल करीब जाकर पड़ाव कर लेना चाहिए। रनमस्त खान के उन अल्फाज पर ओगर खान मुस्कुरा दिया था। फिर दोनों भाई लश्कर को हरकत में लाए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे, यहाँ तक कि दोनों ने अंग्रेजों के मुस्तकर के सामने जाकर पड़ाव कर लिया था। उस वक्त दोपहर का वक्त था। अंग्रेज अपनी जगह बिल्कुल तैयार और मुस्तैद थे। उनके लश्कर की तादाद भी ओगर खान और रनमस्त खान के मुत्तहिदा लश्कर से ज्यादा थी। ताहम बड़े पुरसकून अंदाज में ओगर खान और रनमस्त खान ने अपने लश्कर का पड़ाव किया। लश्कर में शामिल जो औरतें थीं उन्हें पड़ाव में मुंतकिल किया गया। बार बरदारी के जानवर एक तरफ रखे गए। जरूरत का सारा सामान भी पड़ाव के दरमियानी हिस्से में महफूज कर दिया गया था। उसके बाद लश्कर के मुख्तलिफ हिस्सों को फराइज सौंपते हुए कुछ को चाको चौबंद रहकर अंग्रेजों पर निगाह रखने के लिए कहा गया था, बाकी को आराम करने का मशवरा दिया गया था। अंग्रेजों ने जब देखा कि मुसलमानों का आने वाला लश्कर आते ही उनके साथ जंग की इब्तिदा नहीं करना चाहता, तो उन्होंने भी मुसलमानों पर निगाह रखने के लिए अपने लश्कर का एक हिस्सा मुस्तैद कर दिया था। अब सूरत हाल ये थी कि अंग्रेजों के लश्कर और पड़ाव की पुष्ट की तरफ समंदर था, मुसलमान उनके सामने थे। यूं दिन तमाम हुआ, रात वारिद हो गई। रात के आखिरी और पिछले हिस्से में अंग्रेजों के पड़ाव के अंदर अफरा तफरी और बेचैनी उठ खड़ी हुई थी, इसलिए कि उनकी खेमागाह के पुश्ती हिस्से में अचानक आग भड़क उठी थी। ओगर खान के लश्करी उनके चंद खेमों को आग लगाने के बाद कामयाबी के साथ वापस अपने लश्कर में जा चुके थे। उस वक्त चूंकि तेज समुद्री हवाएं चल रही थी, लिहाजा उनकी वजह से यह आग एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे से तीसरे खेमे तक बर्फ के कोंदों की तरह लपकती चली गई थी। क्योंकि उस हिस्से में अंग्रेजों के लश्कर के लिए खुर्दो नोश के अलावा जंग में काम आने वाला सामान भी पड़ा हुआ था, लिहाजा अंग्रेज हर शय को फरामोश करते हुए आग बुझाने में मसरूफ हो गए थे। उस वक्त चूंकि ओगर खान के लश्कर में बिल्कुल खामोशी थी, लिहाजा अंग्रेज मुतमईन थे कि इस अचानक भड़क उठने वाली आग की वजह से मुसलमान हमलावर होकर फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों को शायद ये खबर ना थी कि वो आग लगी ना थी, लगाई गई थी। उनकी बदबख्ती के रनमस्त खान भी ओगर खान से अलहदा होकर बड़ी कामयाबी के साथ अंग्रेजों के लश्कर के पहलू की तरफ जा चुका था। जिस वक्त अंग्रेजों के लश्कर में भड़क उठने वाली आग की वजह से अफरा तफरी और इंतशार उठ खड़ा हुआ, उसी वक्त ओगर खान हरकत में आया। आग लगाने से पहले ही वो अपने लश्कर के साथ हमलावर होने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था।
उस वक्त अंग्रेजों के लश्कर में आग की वजह से शोर शराबा, अफरा तफरी के आसार उठते दिखाई दिए। तब ओगर खान हरकत में आया। फिर वो अंग्रेजों पर खूनख्वार बेसहर रातों में दर्द बांटते खौफनाक इश्तिहारों की तरह हमलावर हो गया था। अब अंग्रेज ऐन ओगर खान की उम्मीदों के मुताबिक अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। अपने लश्कर का एक हिस्सा उन्होंने आग बुझाने ही में मसरूफ रखा। लश्कर के दूसरे हिस्से को उन्होंने ओगर खान का हमला रोकने और फिर जवाबी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया था। इस पर अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा लश्कर जवाबी कार्रवाई करते हुए ओगर खान पर हमलावर हुआ था। ओगर खान अपने पहले हमले में काफी अंग्रेजों को काट कर उनके पड़ाव को खून आलूद कर चुका था। और फिर जिस वक्त अंग्रेज बुरी तरह ओगर खान के साथ मसरूफ जंग हुए, तब अंग्रेजों के लिए एक पहलू की तरफ से एक मजीद बदबख्ती उठ खड़ी हुई, इसलिए कि रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ मायूसी के सीमों थर से काले कहर की सूरत और पीले मौसमों की चुप से सदियों के मुहीब कहत की तरह नमूदार हुआ था। फिर देखते ही देखते अंग्रेजों के लश्कर के एक पहलू पर वो हब्स ज़दा सोचों से उठते फिक्र गम के खौफनाक सायों और भूखी जबिल्लतें रखने वाले खूनी अंधियाओं की तरह हमलावर हो गया था। शुरू में अंग्रेजों ने अपना पूरा जोर ओगर खान पर डाला था और उन्होंने इरादा किया था कि पूरी ताकत और कुव्वत से हमलावर होकर मुसलमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दें। इस तरह ओगर खान पर उन्होंने पूरा दबाव डाला था। लेकिन जब एक समत से रनमस्त खान भी उन पर हमलावर हो गया, तब ओगर खान पर अंग्रेजों का दबाव कम हुआ और ये दबाव कम होते ही ओगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ अंग्रेजों की सफों के अंदर घुसकर मौत और जिंदगी का खेल खेलने लगा था। उस मौके पर उसने अंग्रेजों के लश्कर की सफें उलट कर रख दी थी। उस मौके पर अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह हमलावर मुसलमानों को मार भगाएं, लेकिन उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। ओगर खान और रनमस्त खान उनके हमलों को रोकते हुए बड़े खौफनाक अंदाज में जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। उनके लश्करी भी जारहियत इख्तियार करते हुए अंग्रेजों पर खामोशियों की रिदा से उठते बहर के खौफनाक गिरदाब शहरों को जला और ख्वाबों को तोड़ देने वाले बेरोक आतिश फिशानी मवाद की तरह जरबे लगा रहे थे। इस तरह दो तरफा हमले के बायस ओगर खान और रनमस्त खान के खिलाफ अंग्रेजों का कोई भी हरबा कामयाब न हुआ। अंग्रेजों के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। बचने वाले अंग्रेजों ने जब अंदाजा लगाया कि उनके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया है, अब अगर उन्होंने शिकस्त उठाकर भागने वाली बात ना की तो सारे लश्करियों को हमलावर मौत के घाट उतार देंगे। लिहाजा बचे कुचे अंग्रेज अपना पड़ाव छोड़कर भाग खड़े हुए थे और जो अंग्रेज आग बुझाने में मसरूफ थे वो आग पर तो काबू पा चुके थे, लेकिन उस वक्त तक तकदीर ने चूंकि उनके मुकद्दर के किरतास पर शिकस्त लिख डाली थी, लिहाजा वो भी अपनी जानें बचाकर भाग खड़े हुए। इतनी देर तक मशरिक से सूरज भी जमीन के सीने के साथ तांग झांक करने लगा था। हर शहर रोशन हो गई थी। ओगर खान और रनमस्त खान ने पहले अपने जख्मियों की देखभाल की। अंग्रेजों के पड़ाव की हर शय पर उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने अपना पड़ाव वहां से उठाया और समुद्र के किनारे किनारे सफर करते हुए वो चंद मील आगे जाकर एक महफूज जगह पड़ाव कर गए थे। वहां पड़ाव करने के बाद ओगर खान और रनमस्त खान ने तेज रफ्तार कासिद अहमद नगर में औरंगजेब आलमगीर की तरफ भिजवाए थे और अंग्रेजों की शिकस्त और अपनी फतह की खबर भिजवा दी थी। अब वो वहां इसलिए पड़ाव कर गए थे ताकि जो ही उनके वो मुखबिर जिन्हें यूरोप के बहरी कज़ाकों पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किया गया था, वो कज़ाकों से मुतालिक कोई खबर दें तो वो अपनी दूसरी मुहिम की इब्तिदा करें। समुद्र के किनारे ओगर खान और रनमस्त खान को ज्यादा दिन इंतजार न करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके मुखबिरों ने इतला कर दी कि तीनों अंग्रेज कज़ाकों के सरबराहों यानी ब्रिजमैन, रॉबर्ट और विलियम किड के अलावा पुर्तगाली कज़ाकों ने भी कुछ ऊपर साहिल समुद्र पर पड़ाव कर रखा है। उनके पास बेशुमार माल है और वो आपस में माल का लेन देन करने के साथ साथ साहिल के करीब करीब जो शहर और आबादियां हैं वहां वो सामान बेचने की कोशिश करेंगे। ये खबर सुनकर ओगर खान बेहद खुश हुआ, इसलिए कि उसने वहां पड़ाव ही इस मकसद के लिए किया हुआ था कि कज़ाकों से मुतालिक जो ही उसे खबर मिले तो वो उन कज़ाकों के खिलाफ फौरी हरकत में आए। लिहाजा जो मुखबिर कज़ाकों से मुतालिक इतलात लेकर आए थे उनमें से एक को ओगर खान ने अपने करीब बुलाया। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरे भाई, जो खबर तुम और तुम्हारे साथी लाए हो यूं जानो वो मेरे लिए इंतहा दर्जे की खुशी और इत्मीनान का बाइस है। अब मैं तुमसे थोड़ी सी मजीद तफसील जानना चाहता हूँ ताकि मैं इन बहरी कज़ाकों के खिलाफ कामयाब ज़रब लगा सकूं। मेरा पहला सवाल तुमसे ये है कि इन बहरी कज़ाकों के पास सिर्फ छोटी कश्तियां हैं या बड़े बड़े जहाज भी हैं? अगर इनके पास दोनों चीजें हैं तो फिर अपने जहाजों और कश्तियों को इन्होंने कहां कहां लंगर अंदाज कर रखा है? ओगर खान के उस सवाल पर वो मुखबिर कहने लगा, यूरोप के इन बहरी कज़ाकों के पास बड़े बड़े बादबानी जहाज भी हैं और छोटी कश्तियां भी हैं। अब वो जो साहिल पर उतरे हैं तो उनके उतरने की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि उनके बड़े बड़े जहाज तो साहिल से जरा पीछे हटकर खड़े हुए हैं और उनके पास बेशुमार छोटी और बड़ी कश्तियां भी हैं।
अब बहरी कज़ाक अपने बहरी जहाजों से उन्हीं छोटी बड़ी कश्तियों में सवार होकर साहिल की तरफ आए हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, बहरी जहाज तो साहिल से जरा पीछे खड़े हैं और उनकी अनगिनत कश्तियां बिल्कुल साहिल पर खड़ी हुई हैं और वो बहरी कज़ाक खुद उन कश्तियों से जरा फासले पर पड़ाव किए हुए हैं। इन्होंने बाकायदा खेमे नस्ब किए हैं और ऐसी बेफिक्री के साथ वहां पड़ाव किया है जैसे कोई उन पर हमलावर होने की जुर्रत नहीं कर सकता, कोई इनका एहतसाब और जवाब तलबी तक नहीं कर सकता। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब ओगर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं इनका एहतसाब और जवाब तलबी तो ऐसी करूंगा कि इनकी पुश्तें तक याद रखेंगी कि किस हमलावर से पाला पड़ा था। बहरी कज़ाकों पर ऐसी जरब लगाना चाहता हूं कि आने वाले दौर में कोई भी गैर मुल्की बहरी कज़ाक ना मुसलमानों के किसी जहाज पर कब्जा कर सके और ना ज़ायरीन हज पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसके बाद ओगर खान ने आने वाले अपने उन मुखबिरों को आराम करने का हुक्म दिया। उनके जाने के बाद उसने रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, रनमस्त खान मेरे भाई, जो सूरत हाल हमारे इन मुखबिरों ने हमें बताई है उसके तहत बहरी कज़ाकों की मुहिम बंबई के नवाह में अंग्रेजों की मुहिम से कहीं ज्यादा सख्त और कड़ी साबित होगी। हम दोनों को बड़े तरीके और किसी खास हरबे को इस्तेमाल करते हुए इन बहरी कज़ाकों पर हमलावर होकर इनका खात्मा करना होगा। इन बहरी कज़ाकों के हौसले बड़े हुए हैं। माजी में जगह जगह ये शिकस्त और रेख्त का काम करते रहे हैं। लूट मार का बाजार इन्होंने गर्म कर रखा है। अब हमने इन पर हमलावर होकर मीरे मोहतरम पर यह साबित करना है कि हम इन बहरी कज़ाकों से निमट सकते हैं और बहरी कज़ाकों पर हमने ये साबित करना है कि अब तक जो कुछ तुमने किया वो कर चुके। इसके बाद हम तुम्हें मजीद तबाही और बर्बादी फैलाने वाली कार्रवाइयां नहीं करने देंगे। रनमस्त खान मेरे भाई, जैसा कि मुखबिर बता चुके हैं, बहरी कज़ाकों के जहाज साहिल से जरा पीछे खड़े हुए हैं। साहिल के साथ उनकी कश्तियां हैं जो साहिल के साथ बंधी हुई हैं। उन्हीं कश्तियों में बैठकर वो जहाजों से निकलकर साहिल की तरफ आए हैं। अब हम दोनों भाइयों ने वो तरीका कार इस्तेमाल करना है कि बहरी कज़ाक अब अपनी इन कश्तियों में बैठकर हमारे हाथों निकलने और भागने ना पाएं। मेरे भाई, मैं मुखबिरों को थोड़ी देर आराम करने का मौका फराहम कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। इस सिलसिले में मुखबिर हमारी रहनुमाई करेंगे। इन बहरी कज़ाकों से दूर ही तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुझसे अलहदा होकर दाएं तरफ होते हुए आगे बढ़ना। इस तरह तुम खुश्की पर बहरी कज़ाकों से जरा फासले पर चले जाओगे, जबकि मैं बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ूंगा और बहरी कज़ाकों के सामने साहिल समंदर के साथ साथ एक तरह से अपने लश्कर को फैलाकर उनकी राह रोक खड़ा होऊंगा। इस मौके पर मैं पहले ही अपने कुछ लश्करियों को हिदायत जारी कर दूंगा कि साहिल के साथ साथ फैलते ही वो 2 कार्रवाइयां करें। मेरे लश्कर का एक हिस्सा फौरन किनारे के साथ बंधी हुई कज़ाकों की कश्तियों के रस्से खोलकर उन्हें समंदर की तरफ धकेल देगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि अगर कोई सूरत हाल हमारे खिलाफ भी हो जाए तब भी वो बहरी कज़ाक इन कश्तियों के जरिए अपने जहाजों तक ना पहुंच सके। दूसरा गिरोह जो तीर अंदाजों पर मुश्तमिल होगा, जो ही कश्तियों के रस्से खोलकर उन्हें समंदर की तरफ धकेला जाएगा, तब मेरे लश्कर का दूसरा हिस्सा जो तीर अंदाजों पर मुश्तमिल होगा वो आतिशी तीर बहरी कज़ाकों के जहाजों और उनकी कश्तियों पर चलाएंगे। इस तरह कोशिश की जाएगी कि बहरी कज़ाकों के जहाजों और कश्तियों को आतिशी तीरों के जरिए आग लगाकर उनका खात्मा कर दिया जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मेरे भाई, मेरा अंदाजा है हम इन बहरी कज़ाकों का खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। अब मैंने अपने हमले का एक रुख तुम्हारे सामने पेश किया है। जिस वक्त मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने हिस्से के लश्कर के साथ बहरी कज़ाकों के सामने साहिल पर फैल जाऊंगा और मेरे कुछ लश्करी कश्तियों के रस्से काटकर उन्हें समंदर की तरफ धकेलेंगे और बाकी तीरंदाज आतिशी तीर बरसाना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है उस मौके पर बहरी कज़ाक साहिल पर बैठकर तमाशा तो नहीं देखेंगे। वो एकदम अपने आप को मुसल्ला करेंगे और मुझ पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। मैं उनके हमले को रोकूंगा। इतनी देर तक मेरे भाई तुम भी उनकी पुश्त की तरफ से हमलावर होना। इस तरह मुझे उम्मीद है कि अपने लश्कर के दोनों हिस्सों के दरमियान हम बहरी कज़ाकों को पीस कर रख देंगे। ओगर खान जब खामोश हुआ तब रनमस्त खान संजीदगी में कहने लगा, भाई, आपकी इस तजवीज के खिलाफ मैं एहतजाज करता हूँ। जब आप अपने हिस्से के लश्कर के साथ बहरी कज़ाकों की कश्तियों के साथ साथ अपने लश्कर को फैला देंगे और जिस वक्त आप ये काम कर रहे होंगे बहरी कज़ाक आप पर टूट पड़ेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं चूंकि उस वक्त जरा फासले पर होऊंगा, लिहाजा मुझे पुश्त की जानिब से बहरी कज़ाकों पर हमलावर होने में कुछ देर लगेगी। इतनी देर तक बहरी कज़ाक आप पर हमलावर होकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और यह खदशा कम अज कम मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। रनमस्त खान की उस गुफ्तगू के जवाब में ओगर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, रनमस्त मेरे अजीज भाई, अभी मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म नहीं की है, तुम बीच में बोले हो। पहले मुझे अपनी गुफ्तगू खत्म करने दो, इसके बाद तुम जो एतराज करोगे उसका इजाला किया जाएगा। मैं जानता हूँ जो एतराज तुम खड़ा कर रहे हो वो तुम मेरी सलामती, मेरे तहफ्फुज की खातिर कर रहे हो, लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो पहले कहने दो।
तुम्हारे खदशात दूर करने के लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हमले की इब्तिदा सूरज तलू होने से थोड़ी देर पहले की जाएगी, जिस वक्त फिजाओं के अंदर हल्की हल्की तारीकी होगी। चूंकि इन दिनों रातें बेचांद हैं, लिहाजा रात के पिछले हिस्से में तारीकी खूब होती है। सूरज तलू होने से पहले ही पहले जिस वक्त मशरिक से रोशनी फैलना शुरू हो जाती है और आसपास की चीजें हयोलों की सूरत में दिखाई देने लगती हैं, उस वक्त मैं साहिल के साथ साथ अपने लश्कर को फैला चुका हूंगा। इतनी देर तक तुम भी पुश्त की जानिब से बहरी कजाकों के करीब आ जाना। अब तुम्हारा खदशा यह है कि बहरी कजाक एकदम मुझ पर हमलावर होकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उससे बचने के लिए भी उस मौके पर मैं एक कार्रवाई करूंगा। जिस वक्त मेरे साथी कश्तियां खोल रहे होंगे, उनके जहाजों और कश्तियों में आछी तीर फेंकना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त फिजाओं के अंदर हल्की हल्की रोशनी हो चुकी होगी, उसी रोशनी में जहाज और कश्तियां दिखाई देंगे। मेरे भाई, जब हमारी उस कार्रवाई के जवाब में कजाक मेरी तरफ बढ़ेंगे तो मैं अपने लश्कर की अगली 2 सफों को बिल्कुल तैयार रखूंगा। सबसे अगली सफ जमीन पर बैठ जाएगी, पिछली सफ खड़ी रहेगी। इन 2 सफों के पास अपनी कमाने और तीरों के ढेर होंगे। अगली सफ बैठकर और उससे पिछली सफ खड़ी होकर समंदर की तरफ बढ़ने वाले बहरी कजाकों पर बारिश की तरह तीर अंदाजी करेंगे। जाहिर है, जब मेरे लश्कर की तरफ से बारिश की तरह मूसलाधार तीर बहरी कजाकों पर बरसेंगे तो मेरे भाई वो आंखें बंद करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, रुकेंगे, संभलेंगे, उसके बाद कोई तरीका इख्तियार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, इतनी देर तक तुम उनकी पुश्त की जानिब से हमलावर होकर न सिर्फ मुझ पर उनके जोर और दबाव को कम कर दोगे, बल्कि तुम्हारे हमलावर होने की वजह से मेरे लश्कर की अगली दोनों सफें भी अपनी कमाने और तीर एक तरफ रखकर अपनी तलवारें संभाल लेंगी, और फिर सामने की तरफ से मैं भी कजाकों पर टूट पड़ूंगा। इस तरह अपने लश्कर के दोनों हिस्सों के दरमियान मुझे उम्मीद है कि हम बहरी कजाकों को पीस कर रख देंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर मुस्कुराते हुए रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, रनमस्त खान, मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ। मेरे भाई, अब कह तू क्या कहना चाहता है। जवाब में रनमस्त खान खुशी और तमानियत का इजहार करते हुए कहने लगा, भाई, अब मेरे लिए कहने के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। जो खदशात, जो अंदेशे मेरे जहन में उभर रहे थे, उनका आपने हाल भी मेरे सामने पेश कर दिया है। मैं समझता हूँ जब आप शुरू में ही बहरी कजाकों की तवाज़ो तीरों से करेंगे तो वाकई आपकी तरफ बढ़ने में उनकी रफ्तार कम हो जाएगी, और इसी दौरान मुझे मौका मिल जाएगा और मैं पुश्त की जानिब से उन पर हमलावर होकर उनके कसबल निकालना शुरू कर दूंगा। भाई, मैं समझता हूँ जो सालार, जो लश्करी आपकी कमानदारी में काम करता है, वो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। उस मौके पर ओगर खान ने मुस्कुराते हुए रनमस्त खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, भाई, मेरी ऐसी भी तारीफ ना करो कि मैं पानी के बुलबुले की तरह फूल फट जाऊं। उस मौके पर रनमस्त खान ने तड़प कर अपना हाथ ओगर खान के मुंह पर रख दिया और कहने लगा, खुदा ना करे भाई, अल्लाह मियां आपको लंबी उम्र दे। अभी तो मैंने आपके बच्चों को अपनी गोद में खिलाना है। जवाब में ओगर खान कह कहा लगाते हुए कहने लगा, इसका मतलब है तुम्हारे बच्चों को मुझे अपनी गोद में खिलाना पड़ेगा। ओगर खान के उन अल्फाज पर रनमस्त खान भी कह कहा लगाते हुए हंस पड़ा। फिर ओगर खान कहने लगा, उठो, खाने का वक्त हो गया है। राधिका और जरनिगार बड़ी बेचैनी से हमारा खेमे में इंतजार कर रही होंगी। उसके साथ ही दोनों वहां से उठ खड़े हुए। ओगर खान जब रनमस्त खान के साथ अपने खेमे में दाखिल हुआ तो उस खेमे में वाकई राधिका और जरनिगार बैठी हुई थी। जब वो दोनों आगे बढ़कर उनके करीब बैठ गए तब फिक्रमंदी का इजहार करते हुए ओगर खान की तरफ देखकर राधिका कहने लगी, पड़ाव में अफवाह फैली हुई है कि बहरी कजाकों की तरफ से कुछ मुखबिर आए थे और वो आपको उनसे मुतालिक तफसील बता रहे थे। क्या इन बहरी कजाकों? राधिका रुक गई इसलिए कि ओगर खान बोल उठा था, राधिका, तुम लोगों ने ठीक सुना है। बहरी कजाक इस वक्त कुछ आगे साहिल समंदर पर पड़ाव किए हुए हैं और उन पर हमलावर होने के लिए आज आधी रात के वक्त हम यहाँ से मुखबिरों की रहनुमाई में कूच करेंगे। यहाँ तक कहते कहते ओगर खान रुक गया इसलिए कि 2 लश्करी उनका खाना लेकर आ गए थे। खाना रखकर वो चले गए। राधिका और जरनिगार ने खाने के बर्तन लगाए और चारों खजूर की चटाई पर इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। जहां बंबई के नवाह में अंग्रेज ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि औरंगजेब आलमगीर का कोई लश्कर उन पर हमलावर हो सकता है, इसलिए कि बंबई मुगलों की अमलदारी से बहुत बाहर था। इस बिना पर वहां अंग्रेज अपने आप को महफूज ख्याल करते थे। लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने वहां भी अंग्रेजों पर हमलावर होकर उनकी सारी कजी दुरुस्त करके रख दी थी। इसी तरह यूरोप के वो बहरी कजाक भी यही ख्याल करते थे कि जिन इलाकों के अंदर उन्होंने अपने जहाज और कश्तियां खड़ी करके साहिल पर माल का लेन देन शुरू किया हुआ है, वो इलाका भी ऐसा है जहां औरंगजेब आलमगीर का कोई लश्कर हमलावर होकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब कजा और मर्ग ने जिस तरह बम्बई के नवाह में अंग्रेजों के एक बहुत बड़े लश्कर से ताक झांक करते हुए उन्हें खाको खून में मिलाकर रख दिया था, इसी तरह वैसे ही हवादिस और तकदीर के वैसे ही बदतरीन लम्हे इन कजाकों के खिलाफ भी करवटें लेने लगे थे।
जिस वक्त रात अपने अंजाम से बगलगीर होने के लिए अपने स्याह दामन समेटती हुई भागती जा रही थी, फिजाओं के अंदर इक्का दुक्का परिंदे जागते हुए मुख्तलिफ आवाजें निकालकर अपनी मौजूदगी का पता देने लगे थे। उम्मीदों की परियां अपने पर समेटने लगी थी। जिंदगी के आसार ख्वाबीदगी से बेदार होने के लिए अंगड़ाइयां लेने लगे थे। ऐसे में बहरी कज़ाक साहिल समंदर पर बेफिक्री की हालत में पड़े हुए थे। साहिल के साथ साथ दूर तक फैली हुई ठंडी रेत ने उन पर गनूदगी और कसलमंदी को ज्यादा गहरा करके रख दिया था। यहाँ तक कि मौत के तूफान की तरह ओगर खान और रनमस्त खान उनके करीब पहुंच चुके थे। फिर अचानक ओगर खान और रनमस्त खान ने अपने लाहे अमल को आखिरी शक्ल देते हुए अपने काम की इब्तिदा की। रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर को लेकर एकदम समंदर की मुखालिफ समत मुड़ा और एक कावा काटकर बहरी कज़ाकों के एक पहलू की तरफ जाकर अपने आप को उस्तवार करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। जबकि ओगर खान थोड़ा सा मजीद आगे गया, उसके बाद अपने सालारों और लश्करियों के साथ पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत उसने अपनी रफ्तार इंतहा दर्जे की तेज कर दी। फिर देखते ही देखते ओगर खान और उसके लश्करी साहिल के साथ साथ खड़ी बहरी कज़ाकों की कश्तियों के आगे फैल गए थे। उनके ऐसा करने पर बहरी कज़ाक जाग उठे थे। गोरेत पर भागते घोड़ों की टापें कोई ज्यादा बुलंद ना हुई थी, फिर भी लश्कर के भागने के बायस जो जमीन पर धमक पैदा हुई थी वो उनके लिए जलजला साबित हुई थी। हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। इतनी देर तक ओगर खान अपने काम की इब्तिदा कर चुका था। उसके कुछ लश्करियों ने साहिल पर खड़ी कश्तियों के रस्से खोलकर उन्हें समंदर के अंदर धकेल दिया था और दूसरे लश्करियों ने कश्तियों के अलावा उनसे आगे जरा फासले पर खड़े बहरी कज़ाकों के बड़े बड़े जहाजों पर आतिशी तीर फेंकते हुए उन्हें आग लगाना शुरू कर दी थी। ये सूरत हाल जहां बहरी कज़ाकों के लिए गैर मामूली थी, वहां उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी थी। उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी पेटियां बांधते हुए अपने आप को मुसल्ला करना शुरू कर दिया था। इतनी देर तक ओगर खान के तीर अंदाजों ने उनके जहाजों और कश्तियों पर आतिशबारी करते हुए उन्हें आग लगा दी थी और ये सूरत हाल बहरी कज़ाकों के लिए और ज्यादा इश्तियाल अंगेज थी। बहरी कज़ाकों ने अपने आप को तैयार करने में ज्यादा देर न लगाई। फिर देखते ही देखते बहरी कज़ाक अपने आप को उस्तवार करते हुए बरसों के पुरहोल सन्नाटों में सदाओं के उमड़ते गिरदाब की तरह ओगर खान और उसके लश्कर की तरफ बढ़े थे। जो ही बहरी कज़ाक ओगर खान और उसके लश्कर पर हमलावर होने के लिए उनके जरा नजदीक हुए, ओगर खान उसके सालार और लश्करी होश व खिरत के पासबानों फौजमंदी की दास्तानों के अमीनों की तरह हरकत में आए। ओगर खान के लश्कर की अगली सफ एकदम जमीन पर बैठ गई थी, पिछली सफ मुस्तैद थी। फिर देखते ही देखते ओगर खान के पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक अगली दोनों सफों ने आगे बढ़ने वाले कज़ाकों पर बरको बारां की लपक, बरसते ओलों के पेचो ताब की तरह अंधाधुंध और मूसलाधार किस्म की तीरंदाजी शुरू कर दी थी। उस तीरंदाजी के बायस बहरी कज़ाकों के लश्कर की अगली सफें छिद कर रह गई थी। उनके अनगिनत साथी खाको खून होकर जमीन पर लौटने लगे थे। उस तीरंदाजी के बायस कज़ाकों के लश्कर की निगाहों में थकन, चेहरों पर इज़्तिराब तारी करने वाला खौफ व हिरास फैल गया था। फिर जो बहरी कज़ाक बुरी तरह जख्मी हुए थे और जमीन पर गिरकर वावेला करने लगे थे, उनकी चीखों पुकार ने बाकी बहरी कज़ाकों को रंजीदा व बेचैन और परेशान करके रख दिया था। बहरी कज़ाकों ने अंदाजा लगाया कि अगर इसी तरह उनका नुकसान होता रहा तो फिर उनकी तादाद ना होने के बराबर रह जाएगी। लिहाजा अपने सामने अपनी ढालें रखते हुए वो फिर आगे बढ़े। अभी वो ओगर खान पर हमलावर होने के लिए उसके करीब ही पहुंचे थे कि उनकी पुश्त की तरफ से तूफान उठ खड़ा हुआ। रनमस्त खान ताबिंदगी और दरख्शिंदगी को जवाल और पस्ती में बदल देने वाली इस्तराब अंगेजियों और यादों के पुराने अहदों तक में अजल के लम्हे भर देने वाले दर्द अंगेज अलमियों और तेजाबी हवाओं की मार की तरह हमलावर हो गया था। रनमस्त खान के हमले ने बहरी कज़ाकों को हिलाकर रख दिया था। अब वो अपने सामने तीन बड़े बड़े खतरात देख रहे थे। उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा खतरा यह था कि उनके सामने समंदर के अंदर उनकी कश्तियां और बहरी जहाज जल रहे थे। उनके लिए दूसरा खदशा ये उठा था कि पुश्त की जानिब से रनमस्त उन पर हमलावर होकर बड़ी तेजी से उनका कत्लेआम करते हुए उनकी तादाद कम करने लगा था। और उनके लिए इससे भी बड़ा खतरा ओगर खान था, जिसने अभी उन पर हमलावर होने की इब्तिदा करनी थी। उसने अभी सिर्फ तीर अंदाजी करके ही उनके अंदर एक हलचल और मौत का समा बर्पा करके रख दिया था। रनमस्त के हमलावर होने के साथ ही एक और तूफान उठा। ओगर खान ने अपने सालारों और लश्करियों के साथ पहले जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की, फिर वो फितनागरों के सामने आंधियों और जलजलों की कहरमानियों की तरह हरकत में आया। उसके बाद आगे बढ़ा और बहरी कज़ाकों पर उसने गूंगी शाहराओं पर प्यास के बेकिनार सहरा, दर्द की दीवारों के सामने अज़्म के कोहे गिरा और विश्वास और बदगुमानियों के सामने दुख की अंधी बुकल बन जाने वाले हवादिस के रक्स की तरह हमला कर दिया था। यह हमला ऐसा जोरदार
ایسا خوفناک تھا کہ بحری قزاق اسے روک نہ سکے۔ کچھ دیر تک وہ جدوجہد کرتے رہے کہ شاید انہیں سمندر کی طرف جانے کا کوئی راستہ مل جائے اور جو کشتیاں اور جہاز ابھی جلنے سے بچ گئے تھے انہیں کام میں لاتے ہوئے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اوغر خان اور رنمست خان کے دو طرفہ حملوں نے اسے پیس کر رکھ دیا تھا۔ بحری قزاقوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بہت کم ایک طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے، ان میں سے کچھ کوہستانی سلسلوں کی طرف روپوش ہو گئے اور کچھ سمندر میں کود گئے تھے۔ اوغر خان اور رنمست خان کے ہاتھوں بحری قزاقوں کی یہ بدترین اور ذلت آمیز شکست تھی۔ سمندر کے کنارے ان کا خوب قتل عام کیا گیا کہ ان کی ساری طاقت و قوت کو رون دیا گیا۔ ان کی مزید بدقسمتی کہ وہ سارا سامان جس کا انہوں نے لین دین کرنا تھا اور جسے انہوں نے ساحل پر سجا رکھا تھا اس پر اوغر خان اور رنمست خان نے قبضہ کر لیا تھا۔ جس وقت اوغر خان اور رنمست خان بحری قزاقوں کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کر رہے تھے، دو گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں اوغر خان اور رنمست خان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے اوغر خان اور رنمست خان دونوں کسی قدر فکر مند ہو گئے تھے۔ آنے والے دونوں مخبر تھے۔ قریب آ کر دونوں اپنے گھوڑے سے اترے۔ اوغر خان اور رنمست خان بڑے غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں جب قریب آئے تب آنے والے مخبروں میں سے ایک اوغر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ہم ایک انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہ سنت نے آپ کی بیوی رادھیکا کے بھائی کشن سنگھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اوغر خان اور رنمست خان چونک اٹھے تھے۔ کچھ دیر حیرت اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر اوغر خان نے مخبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بھائی، سنت کیسے ان علاقوں میں کشن پر حملہ آور ہوا؟ وہاں تو ابھی تک مرہٹوں کی کارروائیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہاب الدین نے پڑاؤ کر رکھا ہے، اور شہاب الدین کی وہاں موجودگی میں سنت کشن سنگھ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا۔ اوغر خان کے خاموش ہونے پر وہ مخبر کہنے لگا، امیر، کشن سنگھ اپنی حویلی کے نزدیک ہی ایک بستی میں اپنے مزاروں میں سے ایک کی طرف گیا ہوا تھا تاکہ ان سے فصل کی آمدنی کا حساب کتاب لے کہ کچھ مرہٹوں نے اسے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ جس بستی میں کشن سنگھ داخل ہوا تھا اس کے نواح میں انہوں نے گھات لگا رکھی تھی۔ جو ہی کشن سنگھ اپنے کام سے فارغ ہو کر بستی سے نکلا اور چاہتا تھا کہ اپنی حویلی کا رخ کرے، گھات میں بیٹھے مرہٹوں نے اسے پکڑ لیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسے انہوں نے سنت کے سامنے پیش کیا اور سنت نے اس کی گردن مار کر رکھ دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہوا تب کچھ دیر غم زدہ انداز میں خاموش رہنے کے بعد اوغر خان نے اسے مخاطب کیا، دیکھو، پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پڑاؤ کروں گا، خیمے نصب کیے جائیں گے، لشکریوں کو سستانے کے لیے چند دن دوں گا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، تھوڑی دیر تک لشکریوں کے لیے کھانا تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تم دونوں پہلے کھانا کھانا، اس کے بعد واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا، لیکن یہ احتیاط برتنا کہ جب تک تم دونوں لشکر کے اندر قیام کرو کشن سنگھ کے مارے جانے کی خبر کسی سے نہ کہنا۔ میں یہ خبر ابھی اپنی بیوی رادھیکا سے بھی نہیں کہوں گا، بلکہ کسی مناسب موقع پر جبکہ اس کے سامنے خوشی کا کوئی سما ہوگا اس سے یہ خبر کہوں گا تاکہ اس خبر کے باعث وہ کسی صدمے کا شکار نہ ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اوغر خان نے آنے والے ان مخبروں کو پھر مخاطب کیا، کیا تمہیں یا تمہارے دوسرے ساتھیوں میں سے کسی کو یہ خبر اور علم ہے کہ سنت نے ان دنوں کہاں قیام کر رکھا ہے؟ اس موقع پر دوسرا مخبر بول اٹھا، امیر، ہمیں سنت اور اس کے لشکریوں کا محل وقوع معلوم ہے۔ سنت اور اس کے ساتھی سالار دھن، جسے عموماً دھنا کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس شاہراہ پر قیام کر رکھا ہے جو گوداوری کے پاس سے میسور کی طرف جاتی ہے۔ اس مخبر کے اس انکشاف پر لمحہ بھر کے لیے اوغر خان کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر کہنے لگا، اب تم دونوں لشکر گاہ میں چلے جاؤ، تھوڑی دیر تک کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف نکل جانا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں مخبر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک کاٹ کھانے والی خاموشی رہی۔ اوغر خان رنمست خان فکر گیر سے سناٹے میں ڈوبے رہے۔ پھر رنمست خان نے اوغر خان کو مخاطب کیا، بھائی، اس موقع پر میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اوغر خان نے رنمست خان کی طرف غور سے دیکھا، پھر بڑی شفقت میں کہنے لگا، کہو میرے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رنمست خان نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں جلدی جلدی زخمیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا جائے، خیمے نصب کیے بغیر ہی لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں شام تک یہیں قیام کریں، مغرب کی نماز ادا کرنے اور لشکریوں کو شام کا کھانا کھلانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوچ کریں، اس شاہراہ کا رخ کریں جو شاہراہ دریائے گوداوری سے میسور کی طرف جاتی ہے اور جہاں سنت اور دھنا نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے انگریزوں کے پڑاؤ سے جو ہمیں سامان ملا ہے اور اب جو ان بحری قزاقوں کا سامان ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یہ سارا سامان چند دستوں کی نگرانی میں احمد نگر میر محترم کی طرف روانہ کرتے ہیں
और इन दस्तों के जरिए मीर मोहतरम को सूरत हाल से आगाह करते हुए ये भी बता देंगे कि हम मैसूर की तरफ जाने वाली शाहराह पर संत और धना पर हमलावर होने के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही मीर मोहतरम की तरफ ये भी पैगाम भिजवा देंगे कि उन्होंने जो 2 मुहिमें अंग्रेजों और बहरी कजाकों की हमारे सपुर्द की थी, दोनों मुहिमों को हमने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सर कर दिया है और अब हम संत और धना पर हमलावर होने के लिए रवाना हो चुके हैं। भाई गो हम ये मुहिम मीर मोहतरम की इजाजत लिए बगैर शुरू करने वाले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कोई एतराज खड़ा नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर अचानक संत और धना पर हमलावर होकर हम उनके लश्करियों का खात्मा कर दें, संत और धना को भी मौत के घाट उतार दें, तो इस तरह हमारी इस कार्रवाई से जहां मरहट्टों को खासा नुकसान होगा, वहां उनकी ताकत और कुव्वत पर भी ज़रब पड़ेगी और हमारे खिलाफ उनकी कार्रवाइयां मांद पड़ जाएंगी। और अगर हमारे दूसरे सालारों ने जिंजी और हैदराबाद के महाज पर भी मरहट्टों को नीचा दिखाया, तो मेरे ख्याल में मरहट्टों की कार्रवाइयां हमारे खिलाफ कतई तौर पर बंद हो जाएंगी और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि आइंदा हमारे खिलाफ सर उठा सके। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब हल्के से तबस्सुम में ओगर खान कहने लगा, रनमस्त खान मेरे भाई, जो कुछ तुमने कहा है यूं जानो ये मेरे दिल की पुकार है, इसी पर अमल किया जाएगा। उसके बाद दोनों भाई कुछ देर तक जख्मियों की देखभाल करने और लश्करियों का खाना तैयार करने का हुक्म देने के बाद उस जगह आ गए जहां राधिका और जरनिगार शायद उन दोनों ही का इंतजार कर रही थी। ओगर खान जब राधिका के सामने गया तब राधिका उदास और परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। कुछ देर तक टिकटिकी बांधकर बड़े गौर से ओगर खान की तरफ देखती रही। उसके इस तरह देखने से ओगर खान भी परेशान हो गया था। फिर राधिका को मुखातिब करके कहने लगा, क्या बात है, आज तुम मेरी तरफ इस तरह गौर से क्यों देख रही हो? तुम्हारे देखने का अंदाज आज ऐसे है जैसे तुम जिंदगी में पहली बार मुझे देख रही हो। राधिका बेचारी उदास और फिक्रमंद और परेशान ही रही, फिर बिखरती हुई आवाज में कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, जिस हालत में मैं आपको देख रही हूँ ऐसा मैंने आपको पहली बार ही देखा है। राधिका रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, मैं देखती हूँ आपके चेहरे पर उदासी है, अफसुर्दगी और गमजदगी के आसार हैं। अमीर, ये ना सोचिएगा कि मेरी और आपकी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ और मैं आपके मिजाज को परख ना सकूंगी। इससे पहले एक खासा अरसा मैं आपके साथ आपके लश्कर में अपने भाई किशन के साथ कयाम कर चुकी हूँ। आपके उठने बैठने, आपके रद्द अमल, आपके जज्बात और एहसासात का गौर से जायजा लेती रही हूँ, लेकिन जो हालत बनाकर आप अभी मेरे सामने आए हैं, ऐसी हालत में सिर्फ एक मौके के सिवा मैंने आपको कभी ना देखा था, और ये मौका वो था जब आपकी नानी फौत हुई थी। राधिका के उन अल्फाज पर ओगर खान और ज्यादा परेशान हो गया था। अजीब सी हमदर्दी, अजीब से प्यार से कुछ देर उसने राधिका की तरफ देखा, फिर उसने निगाहें हटा ली। इस पर राधिका और ज्यादा कट कर रह गई थी। मजीद ओगर खान के करीब हुई, उसका बाजू पकड़ा और बड़े प्यार और मोहब्बत में कहने लगी, आपने मुंह दूसरी तरफ क्यों फेर लिया है? मेरी तरफ गौर से देखें, क्या परेशानी है? क्या आपका कोई नुकसान हो गया है? मैं देखती हूं आपने कजाकों को बदतरीन शिकस्त दी है और आपके लश्कर का कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरा दिल कहता है आपको कोई ऐसी खबर मिली है जिसने आपको परेशान और मुंतशिर करके रख दिया है। राधिका के उन अल्फाज पर जरनिगार इंतहा दर्जे की परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। दूसरी तरफ रनमस्त खान भी अजीब से अंदाज में राधिका की तरफ देखे जा रहा था। राधिका ने लम्हा भर के लिए रनमस्त खान की तरफ भी गौर से देखा, फिर कहने लगी, रनमस्त खान मेरे भाई, मैं आपके साथ ज्यादा दिन तो नहीं रही, लेकिन मैं देखती हूँ मेरे शोहर की तरह आपकी हालत भी मामूल के खिलाफ है। आप दोनों भाई सलाह मशवरा करने के बाद मुझसे और जरनिगार से कोई बात, कोई खबर, कोई हादसा छुपा रहे हैं, तो ये आप दोनों भाइयों की बहुत बड़ी गलती होगी। यहां तक कहने के बाद राधिका खामोश हो गई। चंद सानियों तक फिर वो बड़े गौर से अपने सामने खड़े ओगर खान की तरफ देखती रही, फिर दोबारा उसका बाजू पकड़ा, उसे अपने करीब किया और मुखातिब करके बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत में कहने लगी, पहले ये बताएं, इस जंग के दौरान आपके कहीं चोट, कहीं जख्म तो नहीं आए? ओगर खान मुंह से कुछ न बोला, बस उसने नफी में गर्दन हिला दी थी। उस मौके पर राधिका ने सुख का एक लंबा सांस लिया, कहने लगी, खुदा का शुक्र है आप दोनों भाई खैरियत से हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जरनिगार के अहले खाना में से सब खैरवाफियत से हैं? राधिका के उन अल्फाज पर जरनिगार चौंकी थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। एक सरसरी निगाह उसने पहले राधिका पर डाली, फिर उसकी निगाहें अपने पहलू में खड़े रनमस्त पर जम गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि राधिका फिर बोल उठी। ओगर खान की तरफ देखते हुए वो फिर कहने लगी, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने आपसे कुछ पूछा है। ओगर खान ने सर को एक झटका दिया, फिर कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जरनिगार के अहले खाना में से सब खैरवाफियत से हैं। क्या हुआ, तुम इस किस्म के सवाल क्यों कर रही हो? राधिका ने फिर बड़ी बेचारगी से ओगर खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, आप दोनों भाइयों के चेहरे मुझे ऐसे सवाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर मेरी बहन जरनिगार के अहले खाना सब खैरवाफियत से हैं
तो फिर मेरे भाई को कोई नुकसान हुआ है। मरहट्टे या तो उसे पकड़ कर ले गए हैं या उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। राधिका के उन अल्फाज पर ओगर खान और रनमस्त खान दोनों चौंक उठे थे। फिर ओगर खान ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और पूछा, यह अंदाजा तुम कैसे लगा सकती हो? राधिका बिखरी बिखरी आवाज में कहने लगी, यह अंदाजा मैं इसलिए लगा सकती हूँ कि आप दोनों भाइयों के अहले खाना में से एक नानी ही नानी थी जो फौत हो चुकी हैं। अगर वो जिंदा होती और मैं आप दोनों को परेशान देखती तो अंदाजा लगाती कि नानी अम्मा फौत हो चुकी हैं। लेकिन वो चूंकि इस दुनिया में नहीं, दूसरा सदमा और गम आप दोनों भाइयों को मीरे मोहतरम की वजह से पहुंच सकता था। अगर वो बीमार होते या खुदा ना करे वफात पा जाते तब भी आपको इसी तरह का गम और दुख होता। लेकिन मीरे मोहतरम भी इस मौके पर खैर आफियत से हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो उसकी खबर पूरे लश्कर में फैल चुकी होती। लिहाजा जब मीरे मोहतरम भी ठीक हैं, आपके अहले खाना में से कोई ऐसा नहीं जिसकी वजह से आप दोनों भाइयों को ये दुख पहुंचे, जरनिगार के अहले खाना भी खैर आफियत से हैं, तो फिर मेरा भाई खैर आफियत से नहीं है। ओगर खान ने चौंक जाने के अंदाज में राधिका की तरफ देखा था। कुछ कहना चाहता था कि राधिका ने फिर उसे मुखातिब किया, अमीर, मैं आपकी बीवी हूं। मैंने आपसे लामहदूद प्यार किया है, बेकिनार मोहब्बत आपसे की है। जहां मैं आपके दुख दर्द के साथी हूं, वहां आप मेरे गमो कर्ब के साथी हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। खुदा के लिए मुझसे कोई चीज ना छुपाइएगा। जिस हादसे, जिस अलमिये ने आप दोनों भाइयों को परेशान कर दिया है, उसकी तफसील मुझे और जरनिगार से कह दीजिए। लम्हा भर के लिए ओगर खान ने आंखें बंद कर ली, फिर एक लंबा सांस लिया, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, राधिका, जो अंदाजा तुमने लगाया है वो दुरुस्त है। राधिका दुखती, परेशान और बिखरी सी आवाज में कहने लगी, इसका मतलब है मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ओगर खान मुंह से कुछ ना बोला, सिर्फ असबात में गर्दन हिलाती थी। चंद सानियों तक अजीब से अंदाज में राधिका की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, बहरी कज़ाकों के उस टकराव के बाद 2 मुखबिर हमारे पड़ाव में दाखिल हुए थे। उन्होंने ही ये रूह फरसा खबर हमें सुनाई। उसके बाद ओगर खान ने जो इतला मुखबिरों ने दी थी उसकी भी तफसील कह दी थी, और रनमस्त खान के साथ मिलकर संत और धना पर हमलावर होने का जो मंसूबा बनाया था वो भी राधिका और जरनिगार से कह दिया था। ओगर खान जब खामोश हुआ तब राधिका कहने लगी, अमीर, मुझे आप जैसे शोहर, आप जैसे साथी, आप जैसे मेहरबान पर फख्र है कि आपने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर ये खबर मुझे सुनाना पसंद ना की। आप मुझे गमजदा फिक्रमंद ना देखना चाहते थे। बहरहाल आप परेशान ना हो, मैं इस गम और दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती हूँ। मैं आप दोनों भाइयों की इस बिना पर भी शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने मिलकर संत से मेरे भाई का इंतकाम लेने की ठान ली है। राधिका जब तक बोलती रही, जरनिगार होंठ काटती रही। उसकी आंखों से उस समय आंसू बह निकले थे। राधिका जब खामोश हुई तब वो आगे बढ़ी और उससे लिपट कर रोने लगी थी। जरनिगार की हालत देखते हुए राधिका का दिल भी भर आया था। वो बेचारी फूट फूट कर रोती थी। दोनों कुछ देर तक उसी हालत में लिपटी रोती रही, हत्ता कि ओगर खान ने दोनों को अलहदा किया, उन्हें तसल्ली और तशफ़ी दी। फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, लश्कर थोड़ी देर तक यहाँ से कूच करेगा। इस बिना पर तुम दोनों बहनों ने जो तैयारी करनी है कर लो। मैं संत को अब ज्यादा मौका नहीं देना चाहता। हर सूरत में उसे निमट कर रहूंगा। उसके साथ ही ओगर खान और रनमस्त खान वहां से हट गए थे। जिन दिनों ओगर खान और रनमस्त खान अंग्रेजों और बहरी कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ थे, उन्हीं दिनों औरंगजेब आलमगीर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की। उसने सूरत की अंग्रेज कौंसल के सदर अंदले के अलावा बंबई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन गिर को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जिंदान में डाल दिया। जब ओगर खान और रनमस्त खान ने बम्बई के नवाह में अंग्रेजों की ताकत और कुव्वत को रोंद कर रख दिया और साहिल समंदर पर बहरी कज़ाकों पर भी खूब जरब लगाई, तब अंदले और जॉन गिर ने औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में इल्तमास पेश की कि वो ना डाकू हैं, ना कज़ाकों से किसी दौर में उनका ताल्लुक रहा है, लिहाजा उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने उनसे इस अमर की जमानत लिए बगैर रिहा न किया कि वो ज़ायरीन हज की हिफाजत के पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। औरंगजेब आलमगीर के उस मुतालबे पर उन दोनों अंग्रेजों ने तहरीरी वादा किया कि वो आइंदा ज़ायरीन हज के साथ अपने हिफाजती जहाज भेजा करेंगे। उन दिनों चूंकि हिंदुस्तान की तिजारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों के अलावा फ्रांसीसी और पुर्तगाली भी भूखे करगसों की तरह उमड़ रहे थे, लिहाजा ये लोग बहरी कज़ाकों से एक दूसरे के खिलाफ मदद भी हासिल कर रहे थे और उनकी आपस की उसी रस्साकशी और कशमकश की वजह से अक्सर व बेशतर मुसलमानों के बहरी जहाज भी हदफ बन जाते थे। बंबई में जब अंग्रेजों की ताकत को कुचला गया तो अंग्रेजों के सरबराह चार्ल्स ने तहरीरी तौर पर औरंगजेब आलमगीर से माफी मांगी। उस माफी मांगने के जवाब में औरंगजेब आलमगीर ने अंग्रेजों पर लगभग 1.5 लाख रुपए हर्जाना आयद किया।
जो अंग्रेजों ने अदा कर दिया। अब समंदर के अंदर बड़े बड़े कजाकों का तो खात्मा कर दिया गया था, लेकिन छोटे कजाक जो इधर उधर लूट मार करते रहते थे वो सरगर्म अमल रहे। जब उन लोगों ने भी कुछ मुसलमान जहाजों और कश्तियों को नुकसान पहुंचाया तो एक बार फिर अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के कारखानों में काम बंद करा दिया गया और उन कार्रवाइयों की वजह से अंग्रेजों के अलावा फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों को लगभग 30-30 हजार हर्जाना अदा करने के लिए कहा गया। तीनों अकवाम ने हर्जाना अदा कर दिया। तब अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी अपने जहाजों के जरिए मुसलमानों के जहाजों की हिफाजत और निगरानी तो करने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ बहरी कजाक जिनका अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने सूरत के 2 जहाजों को नुकसान पहुंचाया। सूरत के उन 2 जहाजों के नुकसान की खबर जब सूरत के वाली एतमाद खान को हुई तो उसने मकामी गैर मुल्कियों से 6 लाख रुपए हर्जाना वसूल कर लिया। इस पर उन तीनों अकवाम ने अपनी अर्ज़-ए-दाश्त औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश की, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जो इक्का दुक्का कजाकी की वारदातें होती हैं ये उनके बस से बाहर है और उन लोगों का अंग्रेजों, पुर्तगालियों या फ्रांसीसियों से कोई ताल्लुक नहीं है। औरंगजेब आलमगीर ने भी यही महसूस किया कि बड़े बहरी कजाकों के मारे जाने या उन्हें नुकसान हो जाने की वजह से अब जो बहरी कजाकी की वारदातें होती हैं तो इन पर अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगाली ताजिरों का कोई बस नहीं है। लिहाजा उसने हुक्म जारी किया कि आइंदा कजाकी की सूरत में गैर मुल्की ताजिरों से कोई जुर्माना वसूल ना किया जाए। इस तरह औरंगजेब आलमगीर ने न सिर्फ अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को अपने सामने मती और फरमा बरदार बनाया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बहरी कजाकों की कार्रवाइयां भी खत्म हो गईं। अब हिंदुस्तान में सिर्फ मरहट्टे रह गए थे जिन पर अब आखिरी जरब लगाना रह गई थी और उसकी इब्तदा हो चुकी थी। मरहट्टों के 2 बड़े सालार संत और धना अपने अपने हिस्से के लश्करियों के साथ मैसूर का रुख किए हुए थे। उनके पास लूट मार का बेशुमार माल था। ये वो दौलत थी जो वो एक अरसे से जमा कर रहे थे और अब वो उसे मैसूर में महफूज इलाकों में जाकर रखना चाहते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस दौरान संत और धना के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो गए थे। करीब था कि वो एक दूसरे से टकरा जाते, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उन्हें अभी तक ये खबर ना हुई थी कि औगर खान और रनमस्त खान दोनों जिंदगी को उधेड़ देने वाली अलम नसीबों और रेजा रेजा किरची किरची कर देने वाली अजियतों के ला इंतहा सिलसिलों की तरह उनका रुख किए हुए हैं। संत और धना दोनों अपने अपने लश्कर के साथ एक तरह से बिल्कुल बेफिक्र और मुतमईन थे कि वो ऐसे इलाकों में पहुंच चुके हैं जहां औरंगजेब आलमगीर का कोई लश्कर उन पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये संत और धना की खुशफहमी थी, इसलिए कि इससे पहले औरंगजेब आलमगीर के सालार ही बंबई के नवाह में दुश्मन पर जरब लगाकर ये साबित कर चुके थे कि वो इलाकों से बाहर निकलकर भी अपने दुश्मन से निमट सकते हैं। इस बिना पर मैसूर की तरफ जाते हुए संत और धना ने एक जगह बड़ी बेफिक्री के आलम में पड़ाव किया हुआ था कि रात के वक्त औगर खान और रनमस्त खान दोनों लम्हे लम्हे को करब खेजियों, कतरे कतरे को बिफरती मौजों, जर्रे जर्रे को सहरा के तलातुम और इस्तराब में बदल देने वाले आतिश तूफान की तरह हमला कर दिया था। रात के वक्त औगर खान और रनमस्त खान अपने रहनुमाओं के साथ बड़ी आसानी के साथ वहां पहुंच चुके थे और जासूसों ने उन दोनों को संत और धना के पड़ाव के महल्ले वकू से भी बहुत पहले आगाह कर दिया था। लिहाजा रात के वक्त जब औगर खान और रनमस्त खान ने संत और धना पर शब खून मारा तब मरहटे बौखला कर रह गए थे। मरहटों की बदकिस्मती वो अपने हथियार खोले बैठे थे, इसलिए कि जिन इलाकों में उन्होंने पड़ाव किया हुआ था वहां वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि कोई उन पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या उनसे अपना इंतकाम ले सकता है। लिहाजा रात की गहरी तारीकी में बगैर किसी मुजाहमत के औगर खान और रनमस्त खान को मरहट्टों का खूब कत्लेआम करने का मौका मिला। जब तक मरहट्टे अपने आप को मुसल्ला करके मुकाबले पर तैयार होते उस वक्त तक औगर खान और रनमस्त खान उनकी तादाद काफी हद तक कम कर चुके थे। संत और धना के अलावा उनके साथी मरहट्टों को पहले खबर ना हुई थी कि उन पर हमलावर होने वाले कौन हैं, लेकिन जब उनका खूब कत्लेआम हो चुका और बाकी मरहट्टे अपने आप को मुसल्ला करके मुकाबले पर आए तब पता चला कि हमलावर होने वाले औरंगजेब आलमगीर के 2 सालार औगर खान और रनमस्त खान हैं। औगर खान और रनमस्त खान के नाम सुनकर मरहट्टों का अलावा संत और धना पर भी कपकपी तारी हो गई थी। ये दोनों नाम ही मरहट्टों की सारी जुर्रतमंदी, उनकी दलेरी और उनकी शुजात को मुतजलजल करने के लिए काफी थे। औगर खान और रनमस्त खान का नाम सुनकर मुकाबला करने की बजाय मरहट्टे अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। इसी भागदौड़ में संत को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। धना और बेशुमार दूसरे मरहट्टे इस हमले के नतीजे में काम आ गए थे। इस हमले के दौरान जहां तक निगाह काम करती थी मरहट्टों की लाशें पड़ी हुई थी। जब मशरिक से सूरज तलु हुआ तो औगर खान और रनमस्त खान ने देखा दूर दूर तक मरहट्टों के पड़ाव के अंदर वो सामान भरा पड़ा था जो उन्होंने लूट मार से हासिल किया था और जिसे महफूज जगह ले जा रहे थे। सुबह तक अक्सर मरहट्टों का खात्मा कर दिया गया था। बहुत कम को अपनी जानें बचाकर भागने का मौका मिला।
سورج طلوع ہونے کے بعد رن مست خان اور اوگر خان دونوں بھائیوں نے پہلے اس میدان کو لاشوں سے صاف کیا جو سامان اور دولت مرہٹے لے جا رہے تھے، انہیں اپنے قبضے میں لے کر ایک طرف کر دیا۔ پھر اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد جب اوگر خان کو اطلاع دی گئی کہ دھنا اور اس کے بڑے بڑے سالار مارے جا چکے ہیں اور اوگر خان کے کہنے پر سنت کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، تب اوگر خان نے حکم دیا کہ سنت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس وقت سنت کو اوگر خان اور رن مست خان کے سامنے لایا گیا، اس وقت وہ دونوں بھائی اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ اس سامان کے اندر کھڑے تھے جو مرہٹے لے کر جا رہے تھے۔ سنت کو تھوڑی دیر تک اوگر خان بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر تنزیہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، تو تم ہو سنت، تم نے ہی رادھیکا کے ماں باپ کو قتل کیا، تم نے ہی چند دن پہلے رادھیکا کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا، میں پوچھ سکتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ سنت نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی گردن جھکی رہی۔ اوگر خان آگے بڑھا اور زوردار ایک تھپڑ سنت کے منہ پر مارا، پھر دھاڑتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا۔ اوگر خان کا تھپڑ اس زور سے اور اس قوت سے پڑا تھا کہ سنت کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ہمارے پیشوا شیوا جی نے مجھے کشن سنگھ کی بہن رادھیکا سے شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی، اس نے چونکہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا میں نے یہ انتقامی کارروائی کی۔ سنت کی اس گفتگو سے اوگر خان مزید تاؤ کھا گیا تھا، کہنے لگا، اگر کوئی آدمی تمہاری بہن کو پسند کرے اور وہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے تو کیا اس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کو قتل کر کے تمہاری بہن کو حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ اوگر خان کے اس سوال کا سنت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس دوران اوگر خان رن مست خان کی طرف متوجہ ہوا، اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر رن مست خان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رن مست خان لوٹا، اس کے ساتھ رادھیکا اور زرنگار دونوں تھی۔ رادھیکا اوگر خان کے پہلو میں آن کھڑی ہوئی تھی، جو ہی اس نے اپنے سامنے سنت کو دیکھا، غصے اور غضبناکی میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں قہر اور آگ برسانے لگی تھی۔ اس موقع پر اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے اوگر خان کی طرف دیکھا۔ اوگر خان نے بڑے پیارے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، رادھیکا، میں تمہاری حالت کو سمجھتا ہوں، تھوڑی دیر صبر کرو۔ اس کے بعد اوگر خان نے سنت کو مخاطب کیا، سنت، ذرا اپنے سامنے دیکھو، گردن جھکاؤ نہیں، سامنے دیکھو، یہ جو لڑکی میرے پہلو میں کھڑی ہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ سنت نے اپنی گردن سیدھی کی۔ اوگر خان کے ساتھ جب اس نے رادھیکا کو کھڑے دیکھا تب اس کے چہرے پر اداسیاں، آنکھوں میں غم ہجوم کرائے تھے۔ چپ رہا۔ دھاڑتی ہوئی آواز میں اوگر خان نے پھر اسے مخاطب کیا، میں نے تم سے پوچھا ہے، اس لڑکی کی طرف دیکھو، بتاؤ یہ کون ہے؟ مردہ سی آواز میں سنت کہنے لگا، یہی رادھیکا ہے۔ ہلکا سا تبسم اوگر خان کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، یہ صرف رادھیکا نہیں ہے، یہ اب میری بیوی ہے۔ ظالم انسان، تو نے اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کے بھائی کو قتل کیا، اسے وہ زخم دیے کہ اگر ایسے ہی زخم تمہیں ملتے تو تمہارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتے۔ لہٰذا میں اس موقع پر رادھیکا کی کیفیت بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تم بہت سے لوگوں کے مجرم ہوگے، لیکن سب سے بڑے مجرم میری بیوی رادھیکا کے ہو، لہٰذا تمہارے اس معاملے کا فیصلہ میں اسی پر چھوڑتا ہوں۔ یہ جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے، میں اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس موقع پر جب اوگر خان خاموش ہوا تب بڑے پیارے انداز میں رادھیکا نے پہلے اوگر خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی نرم و نازک خوبصورت انگلیاں اس کی انگلیوں میں ڈالی، پھر تشکر آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس سنت کو زندہ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ لشکر میں یہ افواہ اڑ چکی ہے کہ اس کا ساتھی سالار دھنا اور دوسرے سالار مارے جا چکے ہیں، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ رادھیکا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اوگر خان جھکا، اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، کہنے لگا، رادھیکا، تم میری بیوی ہو، بیوی کی حیثیت سے کسی بھی کام کے سلسلے میں تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں رادھیکا پھر ایک دفعہ اوگر خان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی، پھر اپنا ہاتھ علیحدہ کیا، اوگر خان کی پیٹی میں جو اس کی تلوار لٹک رہی تھی اپنا ہاتھ اس تلوار کے دستے پر لے گئی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اوگر خان کی تلوار بے نیام کی۔ اس موقع پر اس کے چہرے اور آنکھوں میں غصے اور انتقام کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر بڑے ماہرانہ انداز میں اس نے اوگر خان کی تلوار بلند کر کے گرائی اور سنت کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر تک خون آلود تلوار ہاتھ میں پکڑے رادھیکا غصے کی حالت میں سنت کی زمین پر پڑی لاش کو دیکھتی رہی، پھر اسی کے کپڑے سے اوگر خان کی تلوار صاف کرتے ہوئے میان میں کی۔ ایک بار پھر اوگر خان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اوگر خان اس سے پہلے بول اٹھا، رادھیکا، اس کام کے سلسلے میں میرا شکریہ ادا نہ کرنا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم کہو گی میں توجہ سے سنوں گا۔ اوگر خان کے ان الفاظ پر رادھیکا مسکرا کر رہ گئی تھی، دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، میں شکریہ ادا نہیں کروں گی، پر اتنا ضرور کہوں گی کہ میں زندگی بھر آپ جیسے شوہر، آپ جیسے جیون ساتھی پر فخر کرتی رہوں گی۔ جواب میں اوگر خان پیار سے رادھیکا کی طرف دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا تھا۔
بہرحال سند کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ مورخین وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ رادھیکا کے بھائی کی موت کے چند ہی دن بعد سند کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اوغر خان اور رنمست خان کی آخری مہم تھی۔ اس مہم سے نمٹنے کے بعد چند دن تک انہوں نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کر کے آرام کرنے کا موقع دیا۔ اس دوران تک اورنگزیب عالمگیر کے دوسرے سالاروں میں سے اعتقاد خان، دلیر خان، داؤد خان، اسد خان اور دوسرے سالاروں نے مل کر دوسرے محاذوں پر بھی مرہٹوں کا زور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اوغر خان اور رنمست خان شاید چند دن مزید وہاں قیام کرتے کہ اسی دوران انہیں اورنگزیب عالمگیر کا پیغام ملا جس نے انہیں طلب کر لیا تھا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ احمد نگر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر 28 فروری کو شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود 90 سال کی عمر میں بھی وہ دربار لگاتا رہا اور 5 وقتی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہا کہ اس دوران اس نے اپنے بیٹوں کو بھی خطوط لکھے جس میں انہیں نصیحت کی گئی کہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور خانہ جنگی کے بیج بونے کی جگہ بھائیوں کو امن و سکون اور محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ یہاں تک کہ 3 مارچ 1707 عیسوی کو وہ علیہ صبح اپنی خوابگاہ سے نکلا۔ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کی، پھر کلمہ پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ صبح 8 بجے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کو دولت آباد سے 40 میل کے فاصلے پر دفن کر دیا گیا۔ اس جگہ کا نام جہاں اسے دفن کیا گیا خلد آباد رکھا گیا اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے نام کے ساتھ ہی اورنگزیب عالمگیر خلد مکانی کے الفاظ سرکاری طور پر استعمال کیے جانے لگے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے لیے بلا شبہ ایک انتہائی المیہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت متزلزل اور زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر اس تاریخی داستان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔